Bismillah Rahman Rahim, and welcome to our session. Let me introduce our guest and topic first, and then I will introduce our panelists. Although we have structured it like an interview, but this is going to be more of a casual conversation. We are joined by the amazing singer, filmmaker, comedian, actor, and social media personality, the legendary Mr. Taimur Salahuddin, Urf aka Muru. He has over a million subscribers on his main YouTube channel where you can find his music, travelogues, educational and comic videos. He has a second podcast channel and he has interviewed numerous well known personalities in Pakistan. He can be easily called one of the pioneers in social media in Pakistan. With him today, we will be discussing his personal journey towards religion and the role of Javed Ghamdi Saab has that and the role that Javed Ghamdi Saab has played in it. We have noticed that, like a honeybee, he has been going around cross pollinating Gandhi Saab's ideas, and his passion inspired us to reach out to him. Welcome, Muru, and hope you are having a good day today. I'm having a wonderful day, Ji. Thank you so much for having me. It's an honor to be involved in anything जो गांधी साहब की काविश के साथ जुड़ी हुई हो. तो pleasure to be here. All right, thank you very much. सही. Let me introduce our panelists today as well, who will be joining me and helping me with this conversation. One thing common between all of us is that we all came from different points of views, different backgrounds. Then we heard Gandhi Saab's views and we were inspired by it. It helped us understand our religion better and answered many of the burning questions that we could not find answers to elsewhere. With me is Sean, who's a senior economist. We've got Umar, who's a budding quantum physicist. Ammar, who's a PhD in computational biology and still a teenager, but I call him the next Gandhi. We will be recording this interview for Al Mawrid Canada. I have been a volunteer with Al Mawrid for many years, and I will be helping conduct the session today. All right. So, with that introduction, let's quickly jump on to the questions that we have prepared. So, our first section is who's Muru? And for that, we go to Muru. Muru, tell us about yourself, growing up, background. What has life been like for you? जी मैं लाहौर की मेरी पैदाइश है. इब्तदाई तालीम मेरी एचसन कॉलेज से हुई थी और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लकास गया था. कुछ देर के लिए मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ी थी, जिसके बाद मैंने फ़ैसला किया वैंकूवर कनाडा के अंदर साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने कंप्यूटर साइंस का बैचलर्स के लिए अप्लाई किया था. और वहाँ पे 6 महीने पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि लिबरल आर्ट्स भी एक चीज़ होती है जो पढ़ी जा सकती है. तो फिर मैंने कहा यार मेरा तो रुझान इस तरफ ज़्यादा है. वहाँ पे फ़िल्म मेकिंग की एक्चुअली एक डिग्री थी और मैंने रियलाइज़ किया कि मैं बचपन से ही एक बहुत बड़ी कलेक्शन मूवीज़ की रखता हूँ और एक बड़ी वोकैबुलरी है मेरी विजुअल स्टोरी टेलिंग की. तो उसको मैं कहीं इस्तेमाल कर सकता हूँ जब मैं कनाडा में पढ़ने गया. तो फिर मैंने कंप्यूटर साइंसेस से अपने आप को अलहदा कर दिया और फ़िल्म मेकिंग की तरफ आया और उसकी मैंने बैचलर्स डिग्री की है, बैचलर्स ऑफ साइंस इन फिल्म प्रोडक्शन, बिकॉज इट्स अ वेरी टेक्निकल डिग्री. तो मैंने साइंस की डिग्री की थी. तो उसकी वो मैंने ऑरलैंडो फ्लोरिडा में एक स्कूल है फुल सेल यूनिवर्सिटी, काफ़ी पॉलीटेक्निक किस्म की डिग्री थी. 2.5 years एक्सेलरेटेड प्रोग्राम, बैचलर्स डिग्री. एंड आई गेस उसके बाद मैंने जो भी पढ़ा लिखा है वो इंटरनेट से पढ़ा है. और गांधी साहब से अगर आप मेरा पूछें तो वो कॉलेज में ही शुरू हुआ था. जब मैं पाकिस्तान छोड़ के गया था तो मुझे वहाँ पे मेरे कोई देसी दोस्त नहीं थे, तो मुझे पाकिस्तान बड़ा याद आता था, उर्दू बोलना बड़ा याद आता था कि यार किसके साथ बात करें, मेरा कल्चर क्या है. तो एक तरह से मैं अपनी शनाख्त तो फिर से सोचने लगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस थे. और जब वहाँ पे मैं वेस्ट में पहुंचा मैंने कहा ये तो मेरे लोग हैं नहीं, तो मेरी जड़ें कहाँ की हैं. तो उस वक़्त ज़िया मोइनुद्दीन साहब की रिकॉर्डिंग्स होती थी उर्दू अदब पे, वो सुनता था. गांधी साहब के लेक्चर सुनता था, अब्दा परवीन के गाने सुनता था, नुसरत फ़तेह अली, और ये सारा ट्रेडिशनल हमारी जो आर्ट्स एंड लिटरेचर के. और गांधी साहब तो आई गेस साइंस में भी आते हैं, अदब में भी आते हैं. तो उनको सुन के गांधी साहब का अराउंड दैट टाइम सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था. कम बेश 8-9 साल नहीं, 10-11 साल 12 साल पहले की बात है, जब मैं गांधी साहब को पहले सुनना शुरू किया. और तब वो जियो के ऊपर गांधी नाम का एक शो आता था, उसकी इंटरनेट के ऊपर लो क्वालिटी वीडियोस डाउनलोड करते थे.
और MP3s भी पड़ी हुई थी, अल-मुआरिद की एक वेबसाइट थी, तो वहाँ से मैं डाउनलोड करके सुनता रहता था। प्योरली मेरा कोई मज़हबी इंटरेस्ट इतना नहीं था कि मैं गांधी साहब को सुन रहा होता। तो मुझे इंटरेस्टिंग ये लगता था कि अगर एग्जिस्टेंशलिज़्म पे बात हो रही है, तो गांधी साहब कुरान के साथ-साथ अफ़लातून, अरिस्तु को भी कोट कर देते थे। तो वो एक मुझे लगता था एक वर्ल्डली पर्सपेक्टिव मुझे मिल रहा था। और मेरी एंटागनिज़्म जनरली बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल थॉट से वैसे ही क्योंकि मैं मौसीकी आई गेस आपने सवालों में भी जो आपने मुझे भेजा था लिखा हुआ था कि क्या मौसीकी को क्योंकि हराम समझा जाता है। तो क्योंकि मुझे मौसीकी ने इतना कुछ दिया था ज़िंदगी में, वेदर इट्स डीलिंग विद पर्सनल प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, वेदर इट्स डीलिंग विद रिजेक्शन इन रोमांटिक लाइफ, तो वो एक सुकून एक मिलता था मौसीकी से मुझे। तो मैंने कहा अगर ये एक ऐसी बिलीफ है जो एक चीज़ जो मुझे इतना फ़ायदा पहुँचाती है और इतनी मेरी ज़िंदगी का साथी है, वो उसी को रिजेक्ट कर रही है, तो मैं उस चीज़ के खुद एंटागनाइज हो गया था कि इस ट्रेडिशनल सोच को मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकता, क्योंकि ये मेरी एक बहुत अहम चीज़ को डिनाई कर देती है, और खुद भी मौसीकार था, तो मेरी एक एक्सप्रेशन ही बंद हो जाती। तो फ़नून लतीफ़ा के कुछ लेक्चर्स थे गांधी साहब के, जिनमें मुझे याद है तैमूर रहमान को भी उन्होंने बुलाया हुआ था और ट्रेडिशनल स्कॉलर्स भी आए हुए थे। तो उस वक़्त मुझे बहुत अपीलिंग लगी उनकी, खाली इसी पर्सपेक्टिव से कि मैं अपनी म्यूज़िक की जर्नी को जस्टिफ़ाई कर सकूँ रिलीजियस पर्सपेक्टिव से। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता वो एक दरवाज़ा खुल गया और गांधी साहब को सुनते आ रहे हैं, और अभी उनकी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट एक 10 घंटे का लेक्चर पड़ा हुआ है, जो मैं अभी तीसरे घंटे पे हूँ। तो मुझे लगता है अभी बहुत कुछ उनसे सीखने को है, तो बस जर्नी हैज़ बिगन। आई एम सॉरी मैंने आपका लेक्चर आपने सवाल तो पूछा हू इज़ मुरू, मगर बड़ा मुश्किल है कि ब्रेक डाउन करना कि आपके किसके इन्फ्लुएंसेस आपने एक्सेप्ट किए, किसके डिनाई किए। बहुत से मेरे हीरोज़ हैं, उनमें से रिलीजियस पर्सपेक्टिव में कुछ कम ही हैं, और उनमें से एक गांधी साहब हैं। अच्छा, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। तो एक क्विकली आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लूँ, मेरे ख़्याल में मैं इसको बाद में कट आउट कर दूँगा, इस बीच में जो एक बिट है। आपके बहुत सारे इंटरव्यूज़ मैंने सुने और उसके अंदर मैंने आपकी जिसे कहते हैं ना कुछ छोटी-छोटी क्लिप्स जो हैं उसमें से काट के निकाली हैं। क्या हम वो यहाँ प्ले कर सकते हैं, क्योंकि यू आर द वन हू स्पीकिंग ओवर देयर मेनली, तो कोई ऑफ कॉपीराइट का कोर्स। प्रॉब्लम तो नहीं होगा? नहीं, अगर हुआ आपने मेरे पॉडकास्ट चैनल से निकाली है, तो अगर हुआ तो मुझे बता दीजिएगा, मैं वहाँ से नहीं, रिमूव नहीं, कर दूँगा। आपके आपके पॉडकास्ट चैनल से दूसरे लोगों के चैनल से भी हैं, यानी कहने का मकसद है यू आर द पर्सन स्पीकिंग, सो टेक्निकली मेरे ख्याल में आपके पास भी राइट तो होता है या नहीं होता? अगर किसी और यूट्यूब चैनल ने पहले अपलोड किया तो उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो जाती है, तो फिर उनसे परमिशन इजाज़त लेनी लेनी पड़ेगी। पड़ेगी। जी। चलें, फिर मैं वो क्लिप्स नहीं प्ले करूँगा जो दूसरों के चैनल से, मैं वैसे आपकी अपनी अगर क्लिप्स प्ले करूँगा। इफ लेस देन 20% ऑफ द वीडियो इज़ ओरिजिनल कंटेंट, तो यूट्यूब एल्गोरिदम भी कोई ख़ास उसके ऊपर नहीं अ, काम करता अच्छा, तो। लेस देन 20% डेफिनिटली होगा। ये तो हाँ, तो 30-30 एग्ज़ैक्टली। सेकंड्स की है मैक्सिमम। हाँ, तो शुडन्ट बी प्रॉब्लम। ऑलराइट, कूल। सो विल कम बैक टू दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लेट्स गो बैक टू द काइंड ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने अपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में और जो मैंने न्यूज़पेपर्स और दूसरी जगहों पे पढ़े थे, उसमें आपने एक चीज़ जो पर्टिकुलरली आपने काफ़ी आइडेंटिफ़ाई की कि यू हैड अ बिट ऑफ अ रिबेलियस चाइल्डहुड, और उसके अंदर आपने कोई जिसे कहते हैं ना कि it's like you were not finding where your place was, or you were kind of clashing with the system, हुँ। or जिसे कहते हैं ना कि incidents may have happened as well। मगर मेरा जो ज़्यादा उसमें क्वेश्चन ये था कि ये इसकी जो आपकी जो पर्सनैलिटी थी, डिड दिस गिव यू सम सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट माइंडेडनेस, यानी कि आप अपने तौर पे कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते थे, अपने टर्म्स पे एक्सप्लोर करना चाहते थे, rather than whatever is going on in the environment या सोसाइटी में जो भी हो रहा है उसको आप एज इट इज एक्सेप्ट कर लें। तो टेल अस अ बिट अबाउट दैट। जी, बिल्कुल। एक तरह से रिबेलियन जो थी, मैं कई दफ़ा सोचता हूँ मुड़ के, तो मैं कहता हूँ कि क्या वो इसलिए थी क्योंकि जिन चीज़ों में मुझे दिलचस्पी थी उनको यहाँ पे अहम नहीं समझा जाता, या जिस तरह के मैं सवाल पूछता था उनके जवाब ना मिलने पे कोई मेरे पे गुस्सा हो जाता था। तो एक मेरे अंदर एंटी अथॉरिटेरियनिज़्म सी सेंटिमेंट पैदा हो गई थी कि अगर कोई इंसान अपने आप को प्रेज़ेंट कर रहा है एज़ एन अथॉरिटी विदाउट presenting reasons for the whatever argument they're presenting, तो मैं उनकी खाली ब्लाइंड अथॉरिटी पे उनके रीजंस नहीं एक्सेप्ट कर सकता। और इसमें कुछ हाथ तो मेरे वालिद साहब का भी होगा, क्योंकि अगर हम पाक स्टडीज़ पढ़ने जाते थे तो मैं घर आता था ओ लेवल्स की पाक स्टडीज़ पढ़ने के बाद, मैं उनको बताता था आज हमने ये पढ़ा, वो कहते थे सारा बकवास है, ये किताब पढ़ो के अजीज़ की। अब मुझे इस किताब का टाइटल नहीं आ रहा, लेकिन वो सारी जो हमें ओ लेवल्स के अंदर किताब पढ़ाई मर्डर ऑफ जाती, हिस्ट्री। मर्डर ऑफ हिस्ट्री, एग्जैक्टली। तो ये किताब पढ़ो, तो वो मुझे जनरली
एक अबू से पर्सपेक्टिव यही मिलता था कि चैलेंज करो ओपिनियन को। हिस्ट्री भी जो होती है वो भी रिवाइज की जाती है, एंड इट्स रिटन बाय द विक्टर्स मोस्ट ऑफ द टाइम। सो वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम, देयर कैन बी 2-3 डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, एंड ऑल्सो आपको एक पर्सपेक्टिव पे अपने आप को लॉक करने की जरूरत नहीं है। यू शुड ऑलवेज बी ओपन टू कंसिडर मोर पर्सपेक्टिव्स। आई थिंक वो कंसिडरेशन जो वालिद साहब ने पैदा की वो स्कूल में, मेरे ख्याल से उसके प्रॉब्लमेटिक किस्म के इंसिडेंट्स भी क्रिएट हो जाते थे, क्योंकि मैं टीचर की अथॉरिटी भी नहीं एक्सेप्ट करता था। और टीचर की अथॉरिटी ना एक्सेप्ट करने पे मुझे एक ग्रेड भी बुरे आना शुरू हो गए, मगर उसके अलावा एक ऐसी क्लास में डाल दिया था जिसके अंदर सारे ही मिसफिट्स थे, और हम सारे टेबल तोड़ देते थे और लॉकर रूम्स तोड़ देते थे, और टीचर आता था, स्पिट बॉल्स मार रहे होते थे, कोई किसी को सीरियसली नहीं लेता था। एंड आई फाउंड माई होम देयर with these misfits, जिनके अंदर मैल अडेप्टेशन थी फॉर द एजुकेशनल सिस्टम दैट एग्जिस्टेड इन एचसन कॉलेज। और उसमें मतलब कि उसके मेरे पे भी बड़ी शख्सियत पे मनफी नतायज आ गए थे कि बिल्कुल ब्लाइंड रिबेलियन भी एक तरह से शुरू हो जाता है। वो मुझे अपने आप को रीवायर बाद में रिकंसिडर करके करना पड़ा कि अगर एंटागनिज्म है भी तो वो उसको किस रवैये में रखना चाहिए, कि स्पिट बॉल्स पे नहीं जाना और टीचरों की बेइज्जतियां नहीं करनी, मगर सवाल पेश करना है, और सवाल भी इज्जत के साथ और अदब के साथ करना है। आई थिंक उनमें गांधी साहब का बड़ा अच्छा रोल है, क्योंकि उनका जो मिजाज है इल्मी इख्तलाफ का, वो मुझे बहुत पसंद आया, और वो मैंने अपने अंदर अडॉप्ट करने की, उनकी ज़ुबान के ज़रिए, उनके लहजे के ज़रिए, एक तरह से मैं जब भी किसी आर्ग्यूमेंट में घुसता हूँ तो मैं कहता हूँ गांधी साहब किस तरह जवाब देते, तो वो एक मॉडल आ जाता है आपके दिमाग में। जबकि मैं ज़रूरी नहीं है कि उनकी हर बात एक्सेप्ट करूँ, लेकिन उनका मिजाज जो है वो मुझे बहुत पसंद है। नहीं, नो डाउट, पर्सनल एग्जांपल जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और स्पेशली इन द रिलीजन ऑफ इस्लाम, जिसके अंदर हम जितनी बात करते हैं, हम अपने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करते हैं, तो सारी बात पर्सनल एग्जांपल से शुरू होती है। तो कुरान ने उसको पिन पॉइंट करके भी बात की है। तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। और लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने कहीं कुछ इस तरह से इंडिकेशन दी थी, लेकिन मे बी दैट्स नॉट नेसेसरली ट्रू। डिड यू हैव अ ब्रश विद एथियज्म एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन योर काइंड ऑफ इन योर लाइफ? और जी। अगर आप खुद डिस्क्राइब करना चाहें कि हाउ डिड योर काइंड ऑफ रिलीजियस थिंकिंग डेवलप, मतलब आप कोई ऐसे कोई फेजेस है जिससे आप गुजरे और देन यू अराइव्ड एट समथिंग? जी, मेरी ब्रश विद एथियज्म और एनी अदर बिलीफ्स जो है वो कभी रुकती नहीं है, वो चलती रहती है। अगर मैं किसी हिंदू से भी मिलता हूँ तो मैं उसकी बिलीफ जानना चाहता हूँ। मैं अभी रिसेंटली मैं एक बुद्धिस्ट लड़के के साथ बैठा हुआ था जो मुझे ब्रीदिंग टेक्निक सिखा रहा था, जो कि एक इल्म है, एक और रिलीजियस पर्सपेक्टिव से वो इल्म उसके पास है, और उस ब्रीदिंग टेक्निक ने मुझे मेरी बड़ी मदद की है कि अपने मिजाज को सीधा करने में। तो मैं कभी डिनाई नहीं कर रहा होता अपनी रिलीजियस बिलीफ की वजह से किसी और की बिलीफ। अगर मैं किसी के साथ टेबल पे बैठता हूँ, जनरली एक्सप्लोरेशन जो है ऑफ आइडियाज़ और डिस्कोर्स जो है वो मुझे बहुत पसंद है, और मैं क्यूरियस इंसान हूँ। तो एथियज़्म के साथ अगर मेरी ब्रश होती है, मैं बहुत से ऐसे लोगों के साथ बैठता हूँ जो एथियस्ट्स होते हैं, तो कभी मैं उनको कन्विंस करने की कोशिश नहीं कर रहा होता, मैं उनकी ज़रूर जस्टिफिकेशंस जानने की कोशिश कर रहा होता हूँ। उसके अलावा मेरा एथियज़्म के साथ बिलीफ कंप्लीटली कभी नहीं थी। मुझे हमेशा से एक इंस्टिंक्चुअल बिलीफ होती थी कि कोई एक डिज़ाइनर है, और ये एक इंटेलेक्चुअल बिलीफ नहीं थी, ये एक तरह का जज्बाती एहसास ही आप समझ लें, कि पहाड़ की चोटी पे जाके जब मैं खड़ा होता था और मैं नीचे देखता था तो मैं कहता था यार ये खूबसूरती जो है, ये इसका कोई एक ही खालिक हो सकता है। तो वो एक एक फ़ील सी एक आप कह सकते हैं, तो वो उसको मैं इंटेलेक्चुअली जस्टिफ़ाई अभी भी पूरी तरह नहीं कर पाता, लेकिन वो एक मेरे मेरे अंदर बिलीफ है। तो उस हवाले से मैं अभी तक ओपन हूँ। मुझे किसी भी बेशक वो अहले किताब भी ना हो, किसी भी रिलिजन से कोई बंदा हो, तो मुझे उसकी बिलीफ्स में बड़ी क्यूरियोसिटी होती है, क्योंकि आई थिंक लेसन्स कैन बी लर्न्ड फ्रॉम एनीवेयर। डेफिनेटली, बिल्कुल, दैट्स 100% करेक्ट। और मेरे ख्याल में अगर आप ओपन माइंडेड ना होते या दूसरों को सुनने वाले ना होते, तो शायद आप कभी गांधी साहब को भी ना सुनते। हाँ, शायद। हाँ, तो मैं से जस्ट क्विक कमेंट फॉर द पैनलिस्ट। अगर आप किसी टाइम पे, अगर आपके जहन में कोई सवाल है, आप उसमें पूछना चाहें, इंटरजेक्ट करना चाहें, तो यू कैन ऑलवेज जॉइन इन। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो आपने अभी इंटेलिजेंट डिजाइन वाली बात मेंशन की है, विल कम बैक टू दैट एट द एंड। ये एक टॉपिक है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, बट विल कैप्चर दिस एट द एंड इन अ डिस्कशन। तो नेक्स्ट सेक्शन जो हमने
अपने इंटरव्यू का रखा है, that is about your life as a kind of a musician and as an artist, even though I've heard you in an interview saying that you feel pretentious when you say you're an artist. So this is we are calling this session Muru on music and arts. तो जो पहला क्वेश्चन है वो आपने ऑलरेडी काइंड ऑफ एंटिसिपेट कर लिया था कि मैंने जो आपको अब तक आपका काम देखा है, तो मोस्ट ऑफ योर वर्क इज एज अ सिंगर एंड फिल्म मेकर। उसमें अगर आपने कॉमेडी स्किट्स भी कर रहे हैं तो यू आर ब्रिंगिंग इन योर फिल्म मेकिंग स्किल्स इन देयर, और अपनी जैसे कहते हैं कि अपनी कैपेबिलिटीज को वहाँ पे, अपनी क्रिएटिविटी को वहाँ ला रहे हैं। लेकिन जो अपने क्वेश्चन हमने पहले एड्रेस किया कि जनरल ओपिनियन या जो प्रेवलेंट ओपिनियन है वो ये कि भाई म्यूजिक तो हराम है, मगर हम साइमल्टेनियसली ये देखते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर म्यूजिक भी प्रेवलेंट है। यानी कि जो लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा कोई रिलीजियस नहीं कह रहे होते वो भी म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री में हम देखते हैं, चाहे फिल्म का म्यूजिक हो, चाहे नॉन फिल्म म्यूजिक हो, म्यूजिक हमेशा प्रोड्यूस होता रहा है, और रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत ज़्यादा म्यूजिक प्रोड्यूस होता है। अब तो बल्कि बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री प्रोड्यूस हो गई है जहाँ पे रिलीजियस म्यूजिक जो है वो उसको जैसे कहते हैं कि मेन स्ट्रीम पे जो है वो प्रोड्यूस किया जा रहा है और उसको बेचा जा रहा है। तो ये जो ओपिनियन है कि इस्लाम के अंदर म्यूजिक जो है अलाउड नहीं है, आई मीन हाउ डिड did that bother you? What did you think about it? आपने शुरू में बताया कि this was your solace, ठीक है? तो what did you think about this whole thing? मुझे मतलब मैं आपको जिस तरह बता रहा था उसके अंदर यही महसूस हुआ कि एक ऐसी चीज़ है जिसके जिस तरह वो गांधी साहब के लेक्चर में उन्होंने कहा था कि साइंस को बैन नहीं कर सकते क्योंकि उससे बम बनाने का नुस्खा निकल सकता है, आप बम बनाने को बैन कर सकते हैं। तो साइंस के किसी भी डिसिप्लिन के थ्रू बुरी चीज़ें की जा सकती हैं अगर उसमें कोई फाशियत है और कोई ऐसा पहलू है जो कि वल्गैरिटी फैला रहा है या कुछ वाहियात हो रही है, उससे बुरा असर हो रहा है, तो वो आप कर सकते हैं। पर उसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा डिसिप्लिन बुरा है। यानी कि एक अगर इंस्टीट्यूशन करप्शन कर सकती है तो इंस्टीट्यूशन बुरी नहीं है, करप्शन बुरी है। तो उस चीज़ को डिलिनिएट करना बड़ा ज़रूरी है। मैंने तो गालिब की शायरी से लेके नात से लेके हम से लेके सारी म्यूज़िक के अंदर ही सुनी है, और उसके अंदर बहुत अच्छी चीज़ें भी पाई हैं। और मैंने ऐसे भी लोग सुने हैं एमिनेम जो बड़ी वाहियात चीज़ें करते हैं, लेकिन मैं उसको सेपरेट करके एज एन आर्टिस्ट सेपरेटली सुन सकता हूँ और एज उसका जो मैसेज है वो सेपरेटली सुन सकता हूँ, क्योंकि मैंने उसमें से स्किल मैंने निकालनी है, और उस स्किल को मैं अपने तीर कमान को किस तरफ उसका निशाना बना के छोड़ता हूँ वो मेरे पे है। तो मुझे लगता है कि अगर मैंने किसी के वाहियात गाने सुन लिए, मुझे उसका कोई खास असर नहीं हुआ, तो मैं सुन लेता हूँ उसमें से स्किल निकालने के लिए या उसमें से टेक्निक निकालने के लिए या उसकी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। तो आई थिंक वो आप पे भी होता है कि आप अपने आप को सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस हद तक आप बिलीव करते हैं उसमें कि आपने एक चीज़ में से क्या निकाली है। अब मिसाल के तौर पे अगर फिल्में आप देखते हैं तो सीरियल किलर्स के ऊपर फिल्में जब बनती हैं तो सीरियल किलर की नफ्सियात को समझने के लिए आपको एक तरह से गंदगी में उतरना पड़ता है, उस गंदगी को समझना पड़ता है। तो उस समझने के लिए उस इल्म को तो नहीं आपको बैन करना चाहिए, क्योंकि उससे आप पकड़ सकेंगे अगले सीरियल किलर को उसका क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के अंदर, और वो नफ्सियात आप उसकी समझने से रिवर्स इंजीनियर कर सकते हैं उसके बिहेवियर को। तो वो आपको अंदेशा होता है इन चीज़ों के अंदर, लेकिन आपको उस चीज़ को समझना चाहिए कि वो अफेक्ट कर रही क्या है। तो फिल्म के एंड तक ही आपको पता चलता है कि इससे आप पे क्या नफ्सियाती असर हुआ। कई दफ़ा बहुत डार्क सी कोई फिल्म देखते हैं जिसमें सीरियल किलर होता है, लेकिन बाय द एंड ऑफ द फिल्म एक लाइफ अफर्मिंग मैसेज आपको मिल रहा होता है कि इन चीज़ों से अपने आप को कैसे बचाना है, या साइकिल ऑफ वायलेंस किस तरह चल रही है, या अगर पेरेंट्स जो है वो अब्यूज़ करते हैं अपने बच्चों को, तो वो आगे अब्यूज़ की साइकिल किस तरह चलती है। तो बिल्कुल मैं उसको बड़े ओपन पर्सपेक्टिव से देखता हूँ, और मैं सोचता हूँ स्टोरी टेलिंग और आर्ट एक स्पेशल वेन में बनाई जाती है, और स्पेशल वेन को समझना बहुत ज़रूरी है, इससे पहले कि उसको समझे बगैर ही उसका इनकार कर दिया जाए। बिल्कुल सही है। मतलब वो थोड़ी सी रिलीजियस बात हो जाएगी, लेकिन ये तकवा की डेफिनेशन यही बताई जाती है कि एक पाथ है जिसके लेट से दोनों साइड के ऊपर जो है वो कांटेदार झाड़ियां हैं, और आप उस पाथ से गुजर जाएं और आपके कपड़ों में कांटे जो है वो ना लगे, तो ऐसे बच बचा के आप निकल जाएं, तो यही तकवा कहलाता है। क्या बात तो क्या बात है वैसे वाकई।
तो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन ये काफ़ी पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये बात है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो बड़ी हाई प्रोफाइल कन्वर्जन्स हुई। म्यूज़िक इंडस्ट्री के कुछ लोग थे जो कि मज़हब की तरफ गए, जब गए तो उन्होंने बिल्कुल मज़हब सॉरी यानी म्यूज़िक को जो है वो छोड़ दिया, या छोड़ा नहीं तो किसी और फॉर्म में वेल दे रिटर्न। तो जब आपने ये चीज़ें विटनेस किया, आई मीन हाउ डिड दैट इफेक्ट यू? इसके इसके बारे में आपका अपना क्या ओपिनियन रहा, मतलब विदाउट टेकिंग एनी नेम्स? हाँ, मेरे ख्याल से मेरी अपनी ज़िंदगी में भी म्यूज़िक के बहुत अट्रैक्टिव फैक्टर्स रहे हैं जो जो नेगेटिव रहे हैं, और उनको मैंने खुद भी अपने अंदर भी सही किया। लेकिन मैं उसको मौसीकी का, जिस तरह मैं आपको बता रहा था, मसला नहीं समझता। वो एक तरह से आपके अंदर जो डिज़ायर्स होते हैं उनको भाईजान इंटरव्यू हो रहा था, थैंक यू, लव यू। तो मैं उसको इस तरह समझता हूँ, वही आपने जिस तरह ये जो एग्जांपल दी थी ना, कांटेदार झाड़ियां, मैं उन कांटों के अंदर घुस के वो कांटे अपने अंदर लगा के सामने सजा के भी दिखा चुका हूँ लोगों को। और अब मैं अपने आप को सोचता हूँ कि मेरी सारे वॉर्ट्स, मेरी सारी पुरानी माजी में गलतियां आपके सामने हैं, मैं उनको रिमूव नहीं करूंगा, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ और इंसान की एक जर्नी है। तो वो पड़ी थी ऑनलाइन, जो जिस तरह की चीज़ें मैं अब शायद फिर से ना करूँ। और वो इसला इसी तरह ही हुई है कि गांधी साहब के पर्सपेक्टिव से। लेकिन मुझे ओवरऑल मौसीकी बुरी नहीं लगी उसकी वजह से। इस तरह आप हमजा अली बासी की एग्जांपल ले लें, वो फ़िल्म के अंदर एक्ट ज़रूर करेंगे, लेकिन वो शायद जवानी फिर नहीं आनी वाली वीडियो म्यूज़िक वीडियोज़ फिर से ना बनाएँ। तो मेरे पे भी बिल्कुल एग्ज़ैक्ट, मैं उनका भी रिसेंटली इंटरव्यू देख रहा था, मैंने कहा मेरे पे भी बिल्कुल यही असर हुआ है गांधी साहब का। ठीक है जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। यानी मेरे ख्याल में हम उसी काइंड ऑफ थीम की तरफ वापस आ रहे हैं कि हर चीज़ की कुछ एथिक्स होती हैं, एंड एज़ लॉन्ग एज़ यू कीप योरसेल्फ विद इन द बाउंड्स, तो नथिंग इज़ रियली नथिंग इज़ रियली रॉन्ग पर से। ठीक है? तो बात ये कि म्यूज़िक भी जो है वो पार्ट ऑफ ह्यूमन कल्चर है, ह्यूमन लाइफ़ है, और उसको बिल्कुल आउटराइट तो हम निकाल नहीं सकते। और ऑनेस्टली स्पीकिंग जो रिलीजियस दुनिया है, या जो 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 रिलीजियस कल्चर है, उसके अंदर म्यूज़िक बाहर नहीं है, हर जगह मौजूद है। इट्स एवरीवेयर। हुँ, बस इस ये कि हम हुँ। उसके अंदर हमने जो है थोड़ी-सी कुछ चीज़ों में ज़्यादा हम स्ट्रिक्ट हो गए हैं। अच्छा, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे ख़्याल में जो इसमें अगला क्वेश्चन मेरे पास है वो प्राइमरीली इसी चीज़ से रिलेटेड था कि हम कैसे म्यूज़िक को रिफ्रेम करें अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर, कि फिर हम उसको जो है ना वी अंडरस्टैंड इट बेटर, कि हमने उसको जो है ना वो कहाँ रखना है अपनी ज़िंदगी में। तो वो हमने ऑलरेडी आंसर कर दिया, सो आई विल जस्ट स्किप दिस वन। अगले सेक्शन का हमने नाम रखा है मूरू एंड उर्दू, बिकॉज़ Muru has become a champion of Urdu. I don't know. Should I call this ironic? I don't know. But मैं तो you बिल्कुल भी ना फ्रेम करूँ इस चीज़ को, लेकिन आप कहते हैं तो ठीक है। मतलब मैं तो बहुत मुश्किलों से उर्दू बोलता हूँ। मैं अपने आप को सिखा रहा हूँ और क नहीं, but लिखता हूँ। ये this passion is what we admire, कि भाई आपने एक इंटरेस्ट लिया है, खुद आप उसके बारे में पैशनेट हो गए हैं, and you have tried to learn and you have tried to do something about it. जी, बिल्कुल, क्योंकि सीन ये है कि ब सारी की सारा जो इल्म है काफ़ी मामलात में, फ़िलॉसफ़ी हो, साइंस हो, वो अंग्रेज़ी की ज़ुबान में ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करता है। अगर आप जो जो मेरा डोमेन है यूट्यूब और सोशल मीडिया, अगर आप जाके साइंस के किसी कॉन्सेप्ट के बारे में सर्च मारना चाहते हैं, आपको अंग्रेज़ी में मिल जाएगा। तो मैं अपने आप को देखता हूँ, मेरा क्या इफ़ेक्ट है इस दुनिया में, अगर मैं जो ऑलरेडी इल्म है वही अगर रिगर्जिटेट करता जाऊँ। अब ये देखें, रिगर्जिटेट लफ्ज़ अंग्रेज़ी में आया है, मुझे उर्दू में नहीं पता उसका क्या। तो ये मेरी ज़िंदगी में एक अभी चल रही होती है, हर वक़्त की डिक्शनरी लुग़त चल रही होती है, कुछ अंग्रेज़ी में लफ्ज़ आते हैं, उनको उर्दू में ट्रांसलेट कर रहा होता हूँ, फिर कुछ उर्दू के लफ्ज़ आते हैं, उनको अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट कर रहा होता हूँ। तो देयर इज़ अ कांस्टेंट जर्नी। मोस्ट ऑफ द साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स जो मैंने समझे और मेरी इंटेलेक्चुअल थॉट है, गांधी साहब के अलावा सारी अंग्रेज़ी में है। क्योंकि जिन लोगों से मैं मुतासिर हुआ था, उनमें से काफ़ी लोग एथियस्ट भी हैं, कुछ एग्नोस्टिक्स भी हैं, कुछ थियस्ट्स भी हैं, जिस तरह जॉर्डन पीटरसन है, वो क्रिश्चियन थियस्ट है, उनकी मुझे क्रिश्चियन थियोलॉजी के ऊपर लेक्चर्स बहुत पसंद हैं। और तो इस तरह के बहुत से लोग हैं, तो वो लैंग्वेज जो आप डेवलप करते हो अपने आइडियाज़ का इज़हार करने के लिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि उनके कल्चरल कॉन्टेक्स्ट और उनका पीछे वर्ड का जड़ क्या है, कहाँ से वो आया, उसकी एटिमोलॉजी क्या है। तो अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ दोज़ इन द इंग्लिश पर्सपेक्टिव वाज़ अ जर्नी दैट स्टार्टेड एट अ लॉट यंगर ऑफ एन एज। बट लेटर मैंने सोचा कि उर्दू पर्सपेक्टिव से भी ये गांधी साहब के ज़रिए एक और जिया मोइनुद्दीन साहब और
इस तरह मुझे नून मीम राशिद साहब के पाकिस्तान रेडियो के ऊपर इंटरव्यूज़ मिले, इस्मत चुगताई के मिले, जहाँ पे कोई खालिस उर्दू सुनने की मिल जाए और लोगों के एक तो होता है ना उनका उनका काम जो उन्होंने बहुत सोच समझ के विचार से लिखा होता है, एक होता है उनके बोलने का अंदाज़, उनका रवानी से उनका डायलॉग, वो मुझे जहाँ जहाँ मिल जाए ना तो वो मैं बहुत अब्ज़ॉर्ब करने के लिए रेडी होता हूँ उस चीज़ के लिए। तो जर्नी कंटिन्यूज़, आई डू नॉट कंसिडर माई सेल्फ अ चैंपियन। मेरा कांस्टेंट जो ख़यालात सीरीज़ है उसके अंदर प्रोसेस ही ये होता है कि मैं एक चीज़ लिखता हूँ जो आधी उर्दू आधी अंग्रेज़ी में होती है। सफ़े पे मैं पहले राइट से लेफ़्ट लिखना शुरू करता हूँ, फिर बीच में लेफ़्ट से राइट हो जाता हूँ, फिर राइट से लेफ़्ट होता है तो वो अंग्रेज़ी उर्दू मिक्स हो रही होती है एक दूसरे के अंदर, और फिर उसके ऊपर एक इस्त्री की जाती है जिसके अंदर सारी अंग्रेज़ी की चीज़ें रद्द और उनका उर्दू में एग्जैक्ट कोई वर्ड जो उस पे पहुंच सके, जो कि बड़ा मुश्किल होता है कई दफा। तो उसके उस वो एक जर्नी है। उम्मीद है फ्रूटफुल हो, पता नहीं क्या है, बस ही नहीं, शौक है तो। ये वाकई जो है ये एक ट्रिकी काम है, और उर्दू के अंदर जो है वो प्रिसाइज वर्ड ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, यानी कि ट्रांसलेशन जो है आप लिटरल नहीं कर सकते, आपको इडियोमेटिक ट्रांसलेशन करनी होती है, जिसमें आपको जो जिस तरह उर्दू में बात को एक्सप्रेस किया जाता है आपने वैसे उसको बयान करना होता है। तो ऐसे ही मैंने एक मजेदार चीज़ जो है आपकी सुनी थी अपने हाल में इसी अटेम्प्ट में कि आपने यू आर ट्राइंग टू लुक फॉर द राइट वर्ड, आपने कहीं जो है वो अपने ख्याल में आपने इंग्लिश में लिखा होगा पाथ ब्रेकिंग, हाँ, ठीक है, एवोल्यूशन की वीडियो में आपने कहीं ये जो है ना ये रास्ता आपके तोड़। आपके स्क्रिप्ट में, हाँ आपने कहा रास्ता तोड़, मैंने कहा ये कमाल कर दिया नूरों ने। तो ये डेफिनेटली उसकी थोड़ा इडियोमेटिक सा ट्रांसलेशन आर्टिस्टिक थी। लाइसेंस ले लेता हूँ मैं कई दफा। बस ठीक है, तो उसमें वो खैर वो तो मे बी यू कैन पॉपुलराइज रास्ता तोड़। तो चैलेंज जबरदस्त है, और इसी आपके जो काइंड ऑफ उर्दू का जो आपका इंटरेस्ट है, इसी पे थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये आपके अपनी फैमिली के अंदर कोई इन्फ्लुएंसेस रहे हैं, कुछ कोई लोग हैं जो आप जिनको आप जानते हैं जिनसे आपने उर्दू सुनी, जिनसे आप इंस्पायर हुए? आपने कुछ वेल नोन फिगर्स का तो आपने बताया कि जिनसे आपने हम्म। उर्दू सुनी, आपके अपने कोई फैमिली इन्फ्लुएंसेस, जैसे अपने फादर के बारे में बताया कि उन्होंने आपको हिस्ट्री वगैरह में इन्फ्लुएंस किया, जी जी, तो मेरे डू यू वालिद हैव साहब एनी फैमिली इन्फ्लुएंसेस ऑन दिस? नॉट इस तरह के इंटेलेक्चुअल अदबी किस्म की उर्दू हो, हम कोलोquial किस्म की उर्दू इस्तेमाल करते हैं। वालिद साहब जो हैं पंजाबी भी बोलते हैं, उर्दू भी बोलते हैं, और अम्मी भी चिन्योटी हैं तो वो चिन्योटी वाली पंजाबी बोलती हैं, अब्बू कश्मीरी वाली पंजाबी बोलते हैं। तो और उर्दू भी बोलते हैं। अगर कभी किसी लफ्ज़ का मानी ना पता चल रहा हो तो उनको आता तो है, लेकिन वो बोलते वक़्त इतनी कोई निखार से ज़ुबान नहीं इस्तेमाल की जा रही होती। वो यही होता है कि ग्लास दे दें, खाना खा ले, तो वो कलोक्वियल लेवल पे ही चल रही होती है। तो उसके अंदर इनकरेजमेंट ज़रूर रही है। गांधी साहब के लेक्चर्स जो हैं वो वालिद साहब भी देखते रहते थे, और जब मैंने उनको कहा कि मैं देखना शुरू हो गया तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें कब से कह रहा हूँ। मैंने तो मेरे ख्याल से गालिबन इनको गवर्नमेंट कॉलेज में भी देखा था। अभी मुझे आरफा सईदा का एक इंटरव्यू मिला जिनमें उन्होंने कहा था कि गांधी साहब गवर्नमेंट कॉलेज में होते थे। तो मैंने अब्बू को बताया कि मेरे ख्याल से वो वही गांधी साहब हैं जो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में शायद मिले थे, और वहाँ पे वो वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ाते थे। अम, तो वो भी वालिद साहब को बहुत इंटरेस्ट है ना, तो मुझे वालिद साहब बहुत ओपनिंग आई ओपनिंग किस्म की एक्सियम्स बता देते थे। जिस तरह ज़ीनोफ़ेन का एक कोट है, इफ हॉर्सेस कुड ड्रॉ देयर गॉड्स, दे वुड ड्रॉ देयर गॉड्स एज़ हॉर्सेस। तो ये एक एंथ्रोपोसेंट्रिज्म के ऊपर ना एक कमेंट है कि इंसान जो है वो खुदा को जब इमेजिन कर रहा होता है तो वो अपने लिमिटेड पर्सपेक्टिव से जिस तरह वो अपने आप को पहचान पाता है वो तब उसी तरह ही देखता है। तो इसमें आपकी ग्रीक मिथोलॉजी क्या आ जाती है कि ज़ूस को एक इंसान बनाया हुआ था जबकि वो गॉड था। तो इस तरह की वो चीज़ें बोलते रहते थे। तो इन्फ्लुएंस ख्याल के तौर पे वालिद साहब का गैर मामूली है। वो नहीं कहा जा सकता कि उनके बगैर मैं इस तरह की क्यूरियोसिटी भी शायद रखता। अ, मगर उर्दू अदब में नहीं है, वो ज़्यादातर अंग्रेज़ी के एस्पेक्ट्स में ही मुझे एक्सप्लेन करते हैं द इंटेलेक्चुअल थॉट, व्हिच इज़ व्हाई माय इंटेलेक्चुअल थॉट मोस्टली केम इज़ डेवलप्ड इन एन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, ज़बरदस्त। ज़बरदस्त। तो वह ये जो आपने अभी पॉइंट इन ज़ीनोफ़ोन का आपने कोट जो है वो बयान किया, तो ख़ैर इसके अंदर एक नेचुरल लिमिटेशन भी है, वो ये कि हाउ एल्स वुड यू इमेजिन समथिंग? यानी कि अगर हुँ, मैं एक फ्रेंच आदमी जो है वो जाके चाइना में किसी चाइनीज़ से जो है फ्रेंच में बात करना शुरू कर दे, उसको क्या समझ में आएगा? हुँ, कुछ समझ नहीं आएगा। तो जिन बिल्कुल जो ऐसा। जो आपके पास वोकैब्युलरी होती है, जो आपके पास एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसी के अंदर आप समझ सकते हैं।
और कुरान में भी अल्लाह ताला ने जो है वो आपको इन अ सेंस उन्हीं टर्म्स में जो है बात समझाई है, वरना वो कोई बिल्कुल कंप्लीटली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड बातें उसमें अगर लिखी होती तो किसी को समझ में नहीं आती, वो तो बिल्कुल कंप्लीटली क्रिप्टिक चीज होती। हाँ, what's the limitation of the mind and the structure and maps of meaning that exist, and I guess वो brain एक evolving structure भी है जिसके अंदर और से और चीजें भरने की हमारे में सलाहियत आ रही है। तो मैं तो बस इंतजार कर रहा हूँ कि फ्यूचर के अंदर हम साइबरनेटिक एंटिटीज बन जाएं, कि हमारी जो इंटेलिजेंस है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ एक उसका मिलाप हो जाए। फिर तो सर स्ट्रक्चर्स, आई थिंक विल बी एबल टू थिंक, हमारी हॉर्स पावर जो है ब्रेन की वो और भी बढ़ जाएगी। तो फिर शायद विल बी एबल टू दरियाफ्त कि सोलर सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है, क्या जिंदगी का मानी है, एग्जिस्टेंशियल तौर पे हमें और भी शायद जवाब मिल जाए। नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और मैंने देखा आपने फ्यूचरिज्म के ऊपर भी आपने एक आध वीडियोस बनाई है अपनी अपनी मेन चैनल के लिए। तो मैं तो आपसे एक्चुअली इसमें एग्री करता हूँ, हर एक आपसे एग्री नहीं करेगा इस बात पे, क्योंकि मैं जरा फ्यूचरिस्टिक जो आइडियाज हैं उसके अंदर मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट लेता हूँ, और मैं थोड़ा सा उस पर बिलीव भी करता हूँ। आई एम मोर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दोस थिंग्स। बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं नहीं, ये तो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। यहाँ पर मैं आपका जो ना एक क्लिप प्ले करना चाहता हूँ, जो मैंने आपकी एक वीडियो से निकाला है। पुख्तगी के असूल पे नहीं बनी, ये बुनियादी तौर पे एक इम्तिहान के असूल पे बनी है। बहुत सी चीज़ें हैं जो इबरत के लिए रखी गई हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो तज़क्कुर के लिए रखी गई हैं। बहुत से लोग हैं जो माजूर पैदा होते हैं, बहुत से लोगों की याददाश्त चली जाती है। इसीलिए इस दुनिया को ये आपका जो एक कैरेक्टर जो आपकी वीडियो में आता है, आप यू डू अ पूफ एंड दिस कैरेक्टर अपीयर्स। सो मैं जानना चाहता था कि इज दिस कॉन्शियसली मोल्डेड आफ्टर समबडी, और ये आपने या वैसे ही अलग से भी क्रिएट किया? आप मतलब वोकैबुलरी से ही देख लें, बोलने के अंदाज से ही देख लें। मेरे अंदर एक गांधी साहब रहते हैं, इतना सही ज्यादा है। उनको सुना है ना, बहुत ज्यादा सुना है। तो गांधी साहब भी मेंशन करते हैं कि उनके हीरोज का उन पे बहुत ज्यादा असर था, बोलने के लहजे तक में सुनाई देता है। मौलाना फराई साहब के बारे में वो इसी तरह ही बात करते हैं, और मैंने भी कुछ निकाले उनके इंटरव्यूज और मैंने कहा हाँ, वाकई। तो वो तो बहुत ज्यादा असर है, और ये तो लिटरली एक कॉपीड चीज है, कोटेड चीज है ठीक गांधी साहब की। ठीक। और इसीलिए मैंने वो ये भी किया क्योंकि सोर्सेज जो डिस्क्रिप्शन में वो भी गांधी साहब की हैं। तो एक तरह से जो मैंने ओपिनियन एक्सेप्ट किया है अपनी रिसर्च में, उसको मैं सही। अनअडल्टरेटेड प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक ठीक। इधर से उधर लफ्ज भी करने से ना उसका मानी बहुत ज्यादा चेंज हो सकता है। तो एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक तरह से चोरी है, तो अब पता नहीं क्या चीज है क्या चीज। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ये तो आप सब यूर एन सही आर्टिस्ट, यूर अ क्रिएटिव है। पर्सन। आप जिसे कहते हैं ना कि इससे तो आप हम समझते हैं कि ये सिंबल्स एंड मेटाफर्स दैट यू आर ब्रिंगिंग इन इनटू योर आर्ट, तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो आपने आई जस्ट करेक्शन। इवन इफ आई एम रिपीटिंग गांधी साहब के अल्फाज, मैंने कुछ व्हाइट बोर्ड पे एक्स्ट्रा चीजें डाल दी हैं, शायद उससे कोई मदद हो रही है। ठीक है, ठीक। तो नहीं, जस्ट मेक अ करेक्शन, क्योंकि फराही साहब जो है ना वो तो काफी पहले के आदमी है ना। तो फराही साहब के स्टूडेंट थे अमीन हसन इस्लाही। अमीन हसन इस्लाही से जो ना इस्लाही गांधी साहब ने साहब, खुद, इस्लाही साहब जो है उनकी आपने कहीं उसका ऑडियो सुनी हो, या उनका तो डेफिनेटली बहुत इन्फ्लुएंस रहा होगा गांधी साहब के ऊपर। और उसके अलावा बिल्कुल ऐसा। मौदूदी साहब को भी गांधी साहब जो है अपना टीचर कहते हैं, तो मौदूदी साहब की पर्सनालिटी का भी वो कहते हैं उन पे बहुत इन्फ्लुएंस है। हम्म ऑलराइट, कूल। सो अगला क्वेश्चन मैंने बाद में जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग इट इनटू योर रेडार कि गांधी साहब का आपको पता है कुछ पोएटिक काम भी, यानी उन्होंने अपनी शायरी भी की है, उन्होंने अपनी किताब लिखी है, उसका वो आपको मिल जाएगी ऑनलाइन, उसका नाम है ख्याल खामा, उसके अंदर उनकी पोएट्री है। अच्छा, आर मैं यू इनसे फेमिलियर विद इट? नहीं, आई एम नॉट फेमिलियर विद दिस पोएटिक वर्क एक्चुअली। आई शुड चेक इट आउट। मुझे तो अभी अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, उनके चैनल्स पे नहीं आती ना ज्यादा उनकी पोएट्री। शायद उनका एक फर्क चैनल होना चाहिए जहाँ पे वो खाली अपनी पोएट्री करें, नहीं क्योंकि नहीं, वो ही इज नॉट टू इनक्लाइंड टू बिकम अ पोएट। वो अपने आप को कुरान के साथ ही ज्यादा अटैच रखना चाहता है। हाँ, वैसे अगर लैंग्वेज पे इतना ज्यादा कमांड हो तो पोएटिक तरीके से भी इंसान काफी आइडियाज कन्वे कर सकते हैं, लेकिन उसमें आई थिंक इल्मी दलील पेश करें पोएटिक तरीके से तो उसकी खूबसूरती भी खत्म हो जाती है। वो इलामती इजहार होता है, सिंबल्स होते हैं आपकी पोएट्री में, तो अगर उसको आप एक्सप्लेन करने बैठ जाएं तो सारी खूबसूरती भी ड्रेन हो जाती है उसमें से। तो गांधी ये साहब बात के वैसे आप किसी इकबाल के फैन को मत कहिएगा, वो नाराज हो जाएंगे। हाँ, वो तो लिटरल लेना है ना, वो तो बहुत लिटरल चीज है।
ठीक है। तो यानी ये बात मैं आपको इसलिए मेंशन कर रहा था क्योंकि यू आर अ म्यूजिशियन, यू आर एन आर्टिस्ट, तो अगर आप उनकी कोई पोएट्री पढ़ें, अगर आपको पसंद आए, तो यू कैन ऑलवेज कंपोज इट इन म्यूजिक एज़ वेल। ओह, दैट बी इंटरेस्टिंग। मेरा गाने का तरीका बड़ा एक बर्गर किस्म का तरीका है। मैं बड़े कैजुअल तरीके में कन्वे करता हूँ। तो आई थिंक अगर गांधी साहब की ज़ुबान में कोई पोएट्री होगी तो कोई अच्छा उर्दू ट्रेडिशनल सिंगर ही खाली इसको शायद अदा कर पाए। और ये मौसीकी तो में है, मुझे लेकिन एक ये बात क्या, है, लेकिन मौसीकी हमारे में हमारे कुछ बात आर्टिस्ट ने से किया ये ज़्यादा। काम। सॉरी माज़र? हमारे कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ हमारे कुछ आर्टिस्ट ने काम किया है। फॉर एग्जांपल अगर आपको याद हो, जो लाल बैंड है, लाल जी, बैंड में जी। जो है हमारे पोएट्स की जो है जो काइंड ऑफ लेफ्टिस्ट पोएट्स हैं, उनकी पोएट्री के ऊपर अपने स्टाइल के अंदर यानी ऑलमोस्ट वेस्टर्न म्यूजिक के साथ उन्होंने जो है वो गाने बनाए हैं। बिल्कुल, तैमूर रहमान साहब का काम जो है इस मामले में मुझे तो बड़ा पसंद है। उनने ज़्यादातर कम्युनिस्ट, रेवोल्यूशनरी, सुर्खी किस्म के शायरों को जिस तरह जालिब हैं, उनको अपनी मौसीकी के अंदर इस तरह ढाल के किया है। बिल्कुल। मेरा जो ऑब्जेक्टिव है मौसीकी का, वो बिल्कुल अनरिलेटेड है इन चीज़ों से, क्योंकि मैं हम्म, अपने ही जज़्बात का इज़हार कर रहा होता हूँ। मेरे लिए एक बड़ा कैथार्टिक एक्सपीरियंस होता है। तो सही। अगर अ, मैं किसी इमोशनल चीज़ में से गुज़र रहा हूँ, तो मैं तभी खाली मौसीकी बजाता हूँ और बनाता हूँ। तो और वो इमोशन को एक पॉज़िटिव जगह चैनल करने का मेरे लिए एक तरीका है। उसके अंदर इंटेलेक्चुअलिज़्म जो है वो रास्ते में आ जाती है। तो मैं खाली जज़्बात को एग्ज़ॉस्ट करने के लिए कर रहा होता हूँ एक तरह से। चलिए ज़बरदस्त है। आई मीन हर आर्टिस्ट का अपना है, जैसे कहते हैं ना कि अपनी मोटिवेशन होती हैं। तो लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट सेक्शन। इसका नाम हमने रखा है मुरू एंड पब्लिक एजुकेशन। तो क्योंकि आपने आई डोंट नो कि ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि मैंने देखा है कई पॉडकास्टर्स जो हैं बहुत इंटेलिजेंट, बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की जो है पॉडकास्ट कर रहे हैं। और आई मीन दे आर सोर्स ऑफ पब्लिक एजुकेशन। उसमें वो डिफरेंट लोगों को बुलाते हैं, उनसे डिस्कशंस करते हैं, और उससे ऑफ कोर्स इन्फॉर्मेशन और नॉलेज फैलती है। तो आपने भी कुछ पब्लिक एजुकेशन की वीडियोस बनाई हैं, एंड उसमें वो जो एवोल्यूशन की वीडियो काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुई है। मेरा पहले जो क्वेश्चन है वो सिंपली ये है कि यानी फ्रॉम म्यूजिक एंड कॉमेडी वीडियोस आप पब्लिक एजुकेशन की तरफ कैसे मोटिवेट हुए? सर, इंटरेस्ट तो हमेशा से था, लेकिन आर्ट को उस वाले आर्ट को भी मैं अपने इंटेलेक्चुअल थॉट के साथ जोड़ नहीं पा रहा था काफ़ी देर से। फिर कोविड हो गया और मैं कमरे में बंद हो गया और मैं किसी और आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट नहीं कर रहा था। और मुझे एक तरह से बहुत देर से ये तलब भी थी कि मैं कोई ऐसी चीज़ कम्युनिकेट करूँ जो पब्लिक एजुकेशन के अंदर ऐड करे। तो वहाँ से ये एवोल्यूशन की वीडियो, जिसके अंदर मैं उन 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 वक़्तों में वैसे ही एज़ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी रिसर्च में बैठा हुआ था। तो मैंने एक लिखना शुरू कर दी एज़ अ साइड प्रोजेक्ट। मैंने कोई ख़ास इरादा नहीं किया था कि ये पब्लिक को एजुकेट करने के लिए चीज़ है। ये मैं अपने आप को ही एजुकेट करने के लिए वीडियोज़ बना रहा होता हूँ। और जनरली मेरे अपनी जो बिलीफ्स होती हैं वो इन द रिसर्च प्रोसेस हमेशा चैलेंज हो रही होती हैं, और अगर वो ना हो रही हो तो आई थिंक वो आप अपने आप के साथ कोई ग्रोथ नहीं एक्सपेक्ट कर रहे। आपने अपने आप को लॉक कर लिया। तो जनरली यही ख़्यालात सीरीज़ के अंदर कोई एक मौज़ू होता है जिसमें मुझे लगता है कि मुझे सही तरह पता नहीं है इसके बारे में, तो लैक ऑफ नॉलेज को पूरा करने के लिए मैं अपने आप को एक वीडियो से जोड़ देता हूँ। और क्योंकि वीडियोज़ मुझे एज़ अ टाइमलाइन, डेडलाइन और एज़ एन एफर्ट इनिशिएटिव के साथ करनी पड़ती हैं, तो इट फोर्सेस मी to reconsider all of my opinions and probably iron them out and have better justifications for them, um, for the next argument that I might have with a friend who जो आते हैं और हमारी इन चीज़ों में बातें होती रहती हैं। तो just to educate myself, but luckily that did well as well, so it encouraged me to do more. जी, ज़बरदस्त। शॉन, मेरे ख्याल में आपसे एक क्वेश्चन करना चाहते हैं। शॉन, गो अहेड। Yeah, sure. In this area of educational content development, I think as a major social influencer, I mean, social media has transformed the world of information. I think you'd agree, and it's made people like Kamdi Saab accessible to the entire world. But I think that certain people are more successful than others in creating virtual content that has influence and gets attention. And I think creating quality content is a skill which I think can benefit from professional expertise. I found it interesting that you mentioned your early interest in studying filmmaking, and I think those skills are actually directly transferable in creating quality and influential educational and religious content. And I don't think it's actually necessarily a skill that religious scholars themselves need to specialize in.
But in terms of the objective of creating quality religious content, I think there's room for some interesting interdisciplinary collaboration between religious scholars and expert content creators such as yourself. So what do you think about this? Do you have any interest in this, and what kind of opportunities do you see in this respect? I completely agree with you. I think religious scholars are the people who actually do the groundwork of justifying their beliefs and the research for it. And people like me are just. Is everyone still there? सब गायब हो गए एकदम से. No, Hello? everybody is still here. I just switched you to kind of full screen view. Okay. So I think they do all the research and all the groundwork, and we're just popularizers of their opinion in a sense. So, and it's easier to popularize when you make content that is visually engaging, because it's not a literate medium as literate as a language medium is, because वो language के लिए अगर आप कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उसका मानी जानना ज़रूरी होता है, लेकिन an image is something that most people are literate about. The visual literacy is far higher than language literacy in most societies. So इसलिए I think that's the role that I consider myself to take up as someone who is an ombudsperson or an ambassador of other people's opinion. And for me it's just a filtration of देखिए, अब मैं कुरान भी नहीं पढ़ सकता, मुझे अरबी ज़ुबान भी नहीं आती ना, मैं अरबी ज़ुबान को अगर सीख भी लूँ तो उसका तारीख में उस ज़माने का मफ़हूम जान पाऊंगा जिसमें वो इस्तेमाल की गई थी. तो किस तरह मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा ओपिनियन जो है करेक्ट है? मैं सिर्फ यही देख सकता हूँ कि अपनी जो बेसिक इंटेलिजेंस के साथ दूसरों के ओपिनियन सुन के मुझे जो ज़्यादा वायबली अच्छा लग रहा हो, और उसमें डॉक्टर इसरार साहब आ जाते हैं, गांधी साहब आ जाते हैं, यासिर कादी साहब हैं, वो भी बड़े ज़बरदस्त हैं इस मामले में. तो आई कंसिडर माई सेल्फ इन दैट रिगार्ड a popularizer of other people's opinion. I think the visual medium is exactly the best place to do that. So, like, can you? I mean, you would agree, Kid, that like you see the value in the potential collaboration of people of these skill sets. I mean, yes, the religious scholars and the people who are the actual content creators, the expert content creators, right? I think so, and I think that's also already happening as well. But मुझे to be honest थोड़ा बहुत डर लगना शुरू हो गया रिलीजियस कम्युनिटी से, क्योंकि उनके इख्तिलाफात जो होते हैं ना वो बहुत वायलेंट नौयत के इख्तिलाफात होते हैं. ये भी नहीं हो सकता कि हम कोई चीज़ पे डिसएग्री करें और हंसते हंसते आर्ग्यूमेंट करके घर चले जाएं, जिस तरह मैं अपने दोस्तों के साथ करता हूँ डेली बेसिस पे. कोई मसला नहीं होता, दे हैव देयर ओन ओपिनियन एंड वी लिव विद ईच अदर्स ओपिनियंस विद टॉलरेंस. बट यहाँ पे इट्स ऑलमोस्ट लाइक you're breaking someone's followers when you're challenging someone's opinion. तो वो उनको लगता है कि उनके followers तोड़ रहे हो या उनको challenge कर रहे हो, जबकि you're just having a normal discourse and curiously trying to see how each thesis statement when you push it through its tests is justifiable, which is what I'm always trying to do. Like एक thesis statement है आपकी, इसको इस टेस्ट में से गुजारे, इस टेस्ट में से गुजारे, इस टेस्ट में से गुजारे, justifiable बन रही, okay, acceptable. How do you justify it? So वो उस process के अंदर इतना ज़्यादा खतरनाक किस्म की मुखालिफत होना शुरू हो जाती है कि मैं कहता हूँ अच्छा collaborate करना तो चाहिए religious scholars के साथ, लेकिन थोड़ा दूर ही रहे तो बेहतर है. आजकल तो डर ही लग रहा है. नहीं, you can never be too careful in Pakistan. ये तो खैर रियलिटी है, उसमें क्या कह सकते हैं. Unfortunate reality. अमर, आपके पास कोई क्वेश्चन है? जी मूरू भाई, ये आपके लास्ट पॉइंट से रिलेटेड भी है और आपकी एवोल्यूशन वाली वीडियो से रिलेटेड भी है. तो आपने उस वीडियो के पीछे का थॉट प्रोसेस तो खुद ही बता दिया. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपने वो वीडियो बना ली, आपने पोस्ट की, उसके बाद एक रिएक्शन आया उस वीडियो पे, पॉजिटिव भी था बट a lot of it was criticism based as well, जिसमें लोग एक तरह से आपको यही कह रहे थे कि भाई this is not your field, तुम क्यों इस चीजों में पढ़ रहे हो. तो तब आपका रिएक्शन क्या था? मतलब क्या गुस्सा आ रहा था कि यार भाई मैं भी मुसलमान हूँ, मैं भी कोई राय रख सकता हूँ, या उसने आपको डिमोटिवेट किया कि आइंदा मैंने इस तरह के मौजू पे बात नहीं करनी, या जिस तरह आपने कहा कि भाई थोड़ा बहुत कभी डर फील हुआ कि यार कहीं कोई मसला ही ना हो जाए. तो व्हाट वर योर फीलिंग्स आफ्टर लाइक सीइंग दैट रिएक्शन जो कि उस वीडियो के बाद जनरेट हो गया था? आई थिंक पॉजिटिव तो यही रिएक्शन था कि इसने मेरी वीडियो में 2-3 गलतियां हैं, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं और कुछ फैक्ट्स हैं जो मैंने गलत बोले हुए हैं. मिसाल के तौर पे गैलीलियो के साथ जो मैंने कहा हुआ है कि वो मारा गया, वो मारा नहीं गया, उसको इम्प्रिजन किया गया, उसको पनिश किया गया, तो वो गलत था.
एंड डॉक्टर तैमूर रहमान ने मुझे मेरी इस्लाह भी की। तो कुछ चीज़ों में मेरी इस्लाह भी हुई, उसमें 2-3 गलतियाँ हैं। लेकिन जिन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा लोगों का इख्तिलाफ़ है ना, वो मुझे अभी तक गलती महसूस नहीं होती। तो जब उन्होंने कहा कि आपको बोलना नहीं चाहिए क्योंकि आप इससे ना आप स्कॉलर हैं, ना आपकी डिग्री किधर है इस चीज़ में, ये वो। तो मैंने कहा ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैंने शुरू से यही कहा है कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं आपको कन्विंस भी नहीं करने के लिए बैठा हुआ यहाँ पे कि ये सही है, ये गलत है। मैं आपको कह रहा हूँ आप मेरी इस्लाह करें और यही मेरी बेहतरी होगी इससे, अगर आप मुझे कोई चीज़ करेंगे। अभी मैं जिम जा रहा था तो एक वहाँ पे जिम में मैं एक्सरसाइज़ में मिड एक्सरसाइज़ फँसा हुआ था, अपनी एक सुमो स्क्वाट कर रहा था। तो वहाँ पे एक खातून आई, उन्होंने कहा कि आप मूरू है ना, मैंने आपको एक किताब देनी है। तो मैंने कहा जी बिल्कुल, तो वो गाड़ी में भागी, किताब लेके आई, डार्विन्स डिल्यूजन्स उस किताब का नाम था। तो मैंने कहा अब मतलब इससे बेहतर क्या चीज़ मैं चाह सकता हूँ, कोई मुझे किताब दे रहा है, जो मैं पढ़ूँ, जो उनके किसी कज़न ने लिखी है। तो एक तरह से डिस्कोर्स क्रिएट हो गया। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि इस तरह जब कोई आके कहता है ये आप किताब पढ़िएगा, फिर आपका शायद इस चीज़ के ऊपर लॉजिक चेंज हो। जनरली आई थिंक जिस चीज़ के ऊपर इख्तिलाफ हुआ ज़्यादा वेहेमेंट किस्म का इख्तिलाफ, वो चीज़ें मैंने बोली भी नहीं है। लाइक वो मुझे लगता है कि आपने समझ लिया है कि मैं इस पर्सपेक्टिव से आ रहा हूँ, जबकि मैंने ये पर्सपेक्टिव बोला हुआ है और आप उसको उस चीज़ से जोड़ के या मुझे एथियज़्म से जोड़ के आप मेरा आगे प्रेज़ेंट कर रहे हैं और अब आप चाह रहे हैं कि मेरी बिस्त हो जाए। तो वो उस एंगल से जब वो आते हैं तो मैं कहता हूँ यार ये तो इल्मी गुफ्तगू रही नहीं, तो मैं जनरली इग्नोर कर देता हूँ। और इग्नोर करने की मुझे लकीली इन वीडियो से पहले की आदत हो गई थी, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर इतना शोर होता है कि अगर आप हर नेगेटिव कमेंट को अटेंशन देंगे तो आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा असर, हर चीज़ बोलने से पहले आपको झिझक होना शुरू हो जाएगी। तो आई थिंक आई जस्ट बी रियल। मतलब इग्नोरिंग दैट, लेकिन हम तो सिर्फ पॉइंट पे बात कर रहे हैं। ये पॉइंट ये है कि भाई यू मेड अ वीडियो एंड यू आर नॉट एक्सपर्ट ऑफ दैट सब्जेक्ट। तो जिसने रिएक्शन वीडियो बनाई है, क्या वो उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है? अगर वो भी नहीं है तो फिर इस काइंड ऑफ मूड पॉइंट। ठीक है। और दूसरी बात, क्या ऐसा है कि इस फील्ड के जितने एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास उनकी डिग्रीज हैं, पीएचडीज हैं, लाइफ टाइम ऑफ रिसर्च है, क्या वो ये बात नहीं कह रहे? और अगर वो कह रहे हैं तो देन इट इज अ पॉइंट ऑफ व्यू आउट देयर, राइट? तो फिर इतनी प्रॉब्लम क्या बात है? वो असल में प्रॉब्लम जो है वो सारा वो क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज का है। जी। और आई थिंक अपने आप को दुरुस्त मनवाना जो है वो एक बड़ी नार्सिसिस्टिक और ईगोटिस्टिकल चीज़ बन सकती है, जो मेरे में भी है थोड़ी बहुत, और मैं अपने आप में इसे रिमूव करना चाहता हूँ। क्योंकि ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो आई थिंक, एक इंसान है, इंसान का दिल होता है, उसके अंदर बुराइयाँ भी होती हैं, अच्छाइयाँ भी होती हैं, और आप पूरी ज़िंदगी यही कोशिश कर रहे होते हैं कि बुराइयाँ कम हो जाएँ, अच्छाइयाँ ज़्यादा हो जाएँ। तो वो एक अपने आप की राय को मनवाना की जगह दलील पेश करने का रवैया अपने अंदर पैदा करना, वो आई थिंक ज़्यादा बेहतर चीज़ है। और दूसरे को चुप कराना कि आपका इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है और आप एक्सपर्ट नहीं है तो आप चुप हो जाएँ। तो डिस्कोर्स के ज़रिए ही तो इंसान सीखता है। तो आई थिंक वो भी चीज़ एक बुरा रवैया होता है। आई थिंक मैंने तो जितने लोगों ने भी मेरे साथ इख्तिलाफ़ किया है, जनरली मैंने उनको कहा है कि आ जाएँ मेरे साथ पॉडकास्ट कर लें। मगर कई दफ़ा मोस्टली जवाब वापस ही नहीं आया, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है वो गुफ्तगू करना। तो और आई थिंक अगर वो गुफ्तगू करेंगे तो काफ़ी हद तक ये भी उनको नज़र आ जाएगा कि मैं उनसे डिसएग्रीमेंट में मोस्ट चीज़ों में हूँ नहीं। वो डिसएग्रीमेंट एक्चुअली है नहीं, जो आपने देखी सोची भी है वो डिसएग्रीमेंट हो, वो है नहीं। तो सर कोशिश है, आई गेस कोशिश ही कर सकते सही, हैं। बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल में उनके भी अपने सर्टेन कॉन्टेक्स्ट है जिसके अंदर वो बात कर रहे हैं, और उनकी भी अपनी ऑडियंस है। उमर जो है, एक छोटा सा पॉइंट इसी से रिलेटेड, लाइक एनी पॉइंट उन्होंने आपसे कांटेक्ट किया कि भाई वी वांट टू टॉक विद यू, कि भाई आप हमारे साथ सेशन कर लो और लाइक यू कैन पुट फॉरवर्ड योर क्वेश्चंस एंड वी कैन आंसर देम, या बस दे जस्ट मेड अ रिएक्शन वीडियो एंड दैट्स इट, कि भाई बस? सर कुछ केसेस में हुआ है और कुछ केसेस में हम कोशिश भी कर रहे हैं कि हमारी पॉडकास्ट एक्चुअली हो जाए, बट मैं चाह रहा हूँ कि एक डिबेटिंग पॉडकास्ट की जगह एक एक्चुअली कॉन्वर्सेशनल पॉडकास्ट हो, क्योंकि डिबेट में आप एक दूसरे को एंटागनाइज ही कर रहे होते हैं। और मेरा जनरली पॉडकास्ट में ये होता है, आपका जो भी ओपिनियन हो, मैंने हर किस्म के जिन लोगों से मैं डिसएग्री भी करता हूँ उनको बुलाता हूँ, एंटागनाइज नहीं करता। मैं उनके ओपिनियन का जुज़ जानने की कोशिश कर रहा होता हूँ। तो जनरली जवाब नहीं आया, कुछ लोगों का जवाब आया है, और इंशाल्लाह जल्दी ये गुफ्तगू आगे बढ़ेगी, एज़ अपोज़्ड टू इधर ही एक मुखालिफत में फँस के बैठ जाए।
ठीक है, उमर ने अपना हाथ रेस किया, तो उमर अपना क्वेश्चन पूछ लें। जी, मेरा था क्वेश्चन कि आपके कंटेंट में भी पिछले दिनों कुछ अरसे में आपने ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस किया, मसलन जेंडर इश्यूज और फ्यूचरिज्म और टाइम और फ्री विल, स्पेशली क्लाइमेट चेंज, और ये सारी ओपिनियंस जो हैं, इवन दो दे रेलेवेंट कन्वर्सेशन इन द वेस्ट, मुझे लगता है कि ये चीजें अभी पाकिस्तान में उस तरह डेवलप नहीं हुई, मतलब जनरल अवाम इन चीजों पर बात नहीं कर रही है अभी तक, और आर्टिस्टिक बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं वो भी इस तरह की बहसों में कम ही मालूम होता है कि पढ़ते हैं। मसलन जेंडर इश्यूज में तो फिर भी आपको कुछ मिल जाएंगे, लेकिन क्लाइमेट चेंज की इतनी अवेयरनेस नहीं होगी। तो आपको किस चीज ने ऐसा मोटिवेट किया कि आप इस तरह के फिलोसॉफिकल और साइंटिफिक सोशल किस्म के क्वेश्चंस को इंडल्ज करें और उसको अपने मेन जो है चैनल पे अपने कंटेंट के तौर पे पेश करें? जी, मेरी कभी अप्रोच ये नहीं रही कि जो चीज़ डिस्कस हो रही है उसी को ही डिस्कस किया जाए या ट्रेंड्स को वॉच किया जाए कि जो ट्रेंड है उसी के अंदर अपने आप को फिट करें, जिसको कहते हैं हैशटैग राइडिंग, कि आप Right. हैशटैग एक चल रहा है उसको राइड करें। तो मैं आई एम इंटरेस्टेड इन थिंग्स, सो आई काइंड ऑफ read on them, and if I feel like I have a lot to say and something to contribute, I'll say it. अगर वो if it connects with people, it connects with, if it doesn't connect with people. I try to make it visually interesting, even if it's not interesting to you as a subject matter. आपको शायद visually कोई चीज़ interesting मिल जाए and it keeps your attention, and maybe a smattering of knowledge bleeds into your mind, and maybe it makes you think later at some point. गाड़ी चलाते हुए आप कहें हाँ यार उसने कार्बन फुटप्रिंट की बात की थी, क्या पता, you know. So खड़खड़ाते दिमाग के अंदर, ख्यालात के अंदर अगर मैं किसी तरह पहुंच जाऊं ना, तो आई थिंक वो सवालात के अंदर ही वो इंसान का खुद ही शुरू हो जाए, तो मैं उस हवाले से सोच के कर देता हूँ। और वही इट्स जस्ट थिंग्स आई एम इंटरेस्टेड इन। अब मेरा बड़ा वो पर्सनल पर्सपेक्टिव, मैं अपने आप को ऑडियंस समझ के बनाता हूँ कंटेंट, सो इट्स नॉट लाइक कि मैं सोच रहा होता हूँ कि ये थियोरेटिकली ये ऑडियंस होगी, अब मैं इमेजिन करूँ उनको क्या पसंद है और इनकी क्या इंटरेस्ट्स हैं। मैं कहता हूँ मेरा क्या इंटरेस्ट है, मेरी तरह का कंटेंट मुझे नहीं नज़र आ रहा, मैं ए बनाना चाहूँगा, और इस चीज़ में अगर मैं बनाऊँगा तो मैं शायद बाकियों से बेहतर भी हूँ। तो अगर मैं ऐसी चीज़ बनाना शुरू कर दूँ जो सारे बना रहे हैं, तो फिर मैं आई विल बी रन ऑफ द मिल। तो वो that's generally the approach, hence the esoteric subject matter. Also, Is it I all come just from like putting your thoughts out there, या इसके पीछे कोई altruistic किस्म की social awareness वाली भी intent होती है? Because I'm not sure if you're aware, लेकिन इन videos का impact और सिर्फ आपके नहीं, मतलब generally social media पे पाकिस्तान में जिन लोगों ने इनका काम किया है, उसका in my opinion material effect भी जो है सामने आया है। मतलब पिछले 3-4 साल के अंदर ये conversations पाकिस्तान में काफी आगे बढ़ी हैं। तो इसके पीछे ये इंटेंट भी था, और इज इट प्योरली जस्ट कि मुझे ये चीज अच्छी लगती है and I'll just put my thoughts out there? I mean, the intent is basically to describe how you're being responsible, and if it helps somebody else by virtue of them mirroring the emotion or the concern, great. Generally it's like अभी कार्बन फुटप्रिंट की बात हो रही है, तो जनरली मेरे अंदर ये एक चीज़ चेंज हुई है ओवर ईयर्स, कि जो इंसान गाड़ी से बाहर सीधा कूड़ा फेंक देता था, सोचता भी नहीं था, वो इंसान अब नहीं फेंकता, और वो जब गाड़ी चला रहा होता है तो कोशिश करता है उसके अंदर 4 बंदे बैठे हुए हैं और ट्रांसपोर्ट हो रहे हो एज अपोज टू एक बंदा, और जिसने सोलर सिस्टम्स लगाने हैं या जिसने कार्बन फुटप्रिंट अपना काम करना है, तो वो मेरे अंदर एक तब्दीली आई है, तो मैंने उसको बयान कर दिया है। अब वो इफ इट हेल्प्स समवन एल्स मेक अ चेंज एज वेल, एंड दिस हैपेंड लाइक विद पीपल अराउंड मी एज वेल, कि मेरे में तब्दीली आई है तो मैंने अपने एहसासात बयान किए हैं, तो मेरे एहसासात जो हैं वो उनको एक रेसिप्रोकेशन मिली है और उसकी वजह से कोई और भी चेंज हुआ है। तो आई सी इट हैपन इन माय पर्सनल लाइफ द वे पीपल डू इट टू मी, सो आई थिंक इफ इट्स अ paid forward, like if it's something that has helped you kind of say it out and it goes forward, that would help. But generally I enjoy making content, so once the content is done, उसका क्या impact होता है इतना ज़्यादा मैं उसको अपने आप में concern नहीं देता, because the way the social media is, वो आपको likes और comments से condition करते हैं, और आप अगर कोई अंत लेवल बगैरती कर देना तो आपको बहुत views आ जाएंगे, और तो वो अगर वो आपको कंडीशन करना शुरू कर दे, वो रिएक्शन आपको कंडीशन शुरू करना शुरू कर दे, तो फिर तो आप कहीं भी जा सकते हैं, तो फिर तो तमाशा क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो मैं उधर से अपने आप को कंडीशन नहीं होने देता, मैं बस पर्सनल एनवायरनमेंट के अंदर पॉजिटिव लोगों को सराउंड करके उससे कंडीशन होता हूँ। तो द इम्पैक्ट इटसेल्फ इज इट्स नाइस बट डजंट कंडीशन माय बिहेवियर। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।
तो अब हम अपने फाइनल सेगमेंट की तरफ आ जाते हैं, जो इसका हमने नाम रखा है मूरू एंड हिज इंस्पिरेशंस। ठीक है। तो इसके अंदर थोड़ा सा एक हाइपोथेटिकल सा क्वेश्चन है, हैव यू मेट गांधी साहब, एंड इफ यू हैव met, what happened, and if not, what would you say if you met him? मैं मतलब कांपा नहीं हूँ किसी के सामने अभी तक, लेकिन गांधी साहब के सामने शायद कांपना शुरू कर दूंगा। आई हैव नॉट मेट हिम। मेरा उनके बेटे से मुलाकात हुई है, और उनके अंदर भी थोड़ी बहुत गांधी साहब की झलक नज़र आ रही थी, तो वो भी मुझे इंटिमिडेटिंग सी लग रही थी। मेरे जो बहुत बड़े हीरोज होते हैं ना, मुझे मिलने का उनसे मसला होता है, पर्सनली मैं हैंडल नहीं कर पाता। ये भी नहीं, आपने जिस तरह मेंशन किया था ना पहले कि वो कहीं हीरो जो है वो इंसान ना बन जाए, तो उसकी गलतियां ना कहीं आपको नजर आना शुरू हो जाए, उसकी खामियां आपको नजर आना शुरू हो जाए, तो आप उसको आइडियलाइज्ड पोजीशन में ही रखना चाहते हैं, तो सो दैट देयर इज समथिंग यू कैन लुक अप टू। तो वो वाला इतना इशू नहीं है। और जबकि वो हो चुका है मेरे साथ, काफ़ी मौसीकारों से मैं मिला हूँ जिनकी वजह से मैंने मौसीकी बनाना शुरू की। जब मैं मिला, मैंने कहा ये तो मेरी तरह के हैं। तो बिल्कुल डाउन टू अर्थ हो गया एकदम से। बट गांधी साहब से अभी तक मुलाकात नहीं हुई। एक तो वो पाकिस्तान में नहीं होते, एक ख्वाहिश है। उनके बेटे को भी मैंने यही कहा था कि यार मेरी ख्वाहिश है उनसे एक दफ़ा ज़िंदगी में मिलना है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त है। तो खैर अगर आपका यूएस चक्कर लगे फॉर एनी रीज़न, तो आप डैलस जा सकते हैं। डैलस में हम सब बेस्ड हैं इस वक्त करंटली। फिर पाकिस्तान भी वो फ्रॉम टाइम टू टाइम आते जाते रहते हैं। एज अ मैटर ऑफ कोइंसिडेंस इस साल वो पाकिस्तान आए थे, और वो कराची भी आए थे। It is just that you and us were not in touch, वरना हम आपको इन्फॉर्म कर देते। बस किस्मत की बात है, कोई मसला नहीं। वो अगर लिखा होगा तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी। जबरदस्त। तो आपने वैसे रिसेंटली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का भी इंटरव्यू किया, तो व्हाट आर द थिंग्स दैट अट्रैक्ट यू टू हिम? उनका खरा जवाब देना मुझे बड़ा पसंद है। उनका फेयरलेसनेस मुझे बड़ी पसंद है। उनकी जनरली लॉजिक भी मुझे बड़ी पसंद है। और अब मज़हब के मामले में मैं ज़्यादा बारीकियों में नहीं घुसता। मैं इवेंट्स के अंदर, मैं पेपर पे तो जी सुन्नी लिखा हुआ है कि मैं सुन्नी हूँ, लेकिन मेरे ख़ानदान में कभी हमने ये मकतबा फ़िक्र की बहस की नहीं है कि कौन क्या है, तो खुला दिमाग है। तो जनरली मुझे ये भी नहीं पता कि बरेलवी और अहले तशय्युई और शियाओं के अंदर कितने सेक्ट्स हैं, क्या फ़र्क हैं। मैं मिलता हूँ, कोई ना कोई नई चीज़ सुनने को मिलती है, मैं कहता हूँ अच्छा ये इस तरह की बिलीफ भी होती है। तो सवाल क्या था? नहीं, तो आपने मेरे ख्याल में सवाल का जवाब दे दिया है कि व्हाट अट्रैक्ट्स यू टू हिम इज उनका जो है खरे जवाब देना। ठीक है ना, खरे जवाब देना। लेकिन वो इंजीनियर साहब जो है ना बहुत बारीकियों में घुस जाते हैं कि इस वाकये में ये हुआ था, उस वाकये में ये हुआ था, फिर उन्होंने ये जवाब दिया था, वो जवाब दिया था। मैं मैक्रो सोच के अंदर ही रह जाता हूँ, मैं माइक्रो डिटेल्स के अंदर इतना ज़्यादा नहीं घुसता। मेरी अभी मैक्रो सोच अगर सही हो जाए तो मुझे लगे कि मुझे उनके जवाब मिल गए हैं, तो फिर मैं आगे वाकयात के अंदर, और कौन सा वाकया कौन मानता है कौन नहीं मानता, कौन सी हदीस किसने रद्द की किसने नहीं की, कौन सी आयत की किसने क्या इंटरप्रिटेशन की है। अब मैं हर मौजू के अंदर भी नहीं घुसता। मिसाल के तौर पे मैं जिस मौजू की रिसर्च कर रहा होता हूँ उसके अंदर मजहबी नुक्ता नज़र जो है उसको ज़रूर एक दफ़ा स्टडी करता हूँ। और मौजू भी जनरली इल्मी होते हैं, रिलीजियस नहीं होते। तो जिस तरह अगर एवोल्यूशन है तो वो एक साइंटिफिक मौजू है, या सिंस फॉर जिन्स की बात हो रही है तो वो भी एक साइंटिफिक मौजू है। उसमें दीन का एक नुक्ता नज़र है, लेकिन उसकी सोशल साइंसेस की भी बहुत से नुक्ता नज़र है, और उसके बायोलॉजी की भी बहुत से नुक्ता नज़र है। तो मैं सारी चीज़ों के अंदर तब दीन को स्टडी कर रहा होता हूँ। एज ए सोलो स्टडी मेरी दीन नहीं हो रही होती, कोई इतना नहीं हो रहा था। और मुझे गांधी साहब के बेटे ने भी यही कहा था कि आप इस्लाम 360 इंस्टॉल कर लें, गांधी साहब की भी ऐप इंस्टॉल कर लें, और आप अलहदा से कुरान को पढ़ें, जो कि मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ। तो ठीक है, ठीक है। इंशाल्लाह नहीं, ये बात सही है। मतलब आपका जो उसमें पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही है, क्योंकि हर चीज़ जो है ना हर एक का इंटरेस्ट नहीं होती है, हर लेवल ऑफ डिटेल हर एक का इंटरेस्ट नहीं होती।
जो चीज़ आप इंजीनियर साहब से सुन रहे हैं, जब आपने गामदी साहब से लफ्ज़ सुना ना इस्तिदलाल, रीज़निंग, जी तो जी ये इंजीनियर साहब का इस्तिदलाल है जो आपको बता रहे हैं, क्योंकि वो एक सर्टेन मेथोडोलॉजी फॉलो करते हैं और उस मेथोडोलॉजी में उनका इस्तिदलाल, दैट इज़ व्हाट इट साउंड्स लाइक। ठीक है ना? बिल्कुल ऐसा तो ही, हाँ, वो अपना काम कर रहे हैं बेसिकली। बिल्कुल। और वो जी। मुझे उनके इस्तदलाल पे ही था कि जिस तरह तवातुर के अंदर जब मैसेजेस पास डाउन हो रहे हैं एक लिविंग कल्चर के अंदर, जिसके अंदर ज़ुबान के मानी भी तब्दील हो रहे हैं हर जनरेशन के अंदर, तो उसके अंदर पैगाम किस तरह महफूज किया जा सकता है। तो इंजीनियर साहब ने उन्होंने कहा कि ये कुरान का मौजज़ा है। अब मैं उस बात पे कम्प्लीटली कन्विंस नहीं हूँ कि ये मौजज़ा है, क्योंकि वो भी इस्तदलाल की बुनियाद पे होना चाहिए कि अगर ज़ुबान हमें पता है एक लिविंग चीज़ है, जिस तरह लैटिन का कहते हैं कि लैटिन इज़ अ डेड लैंग्वेज, बट अदर देन दैट मोस्ट लैंग्वेजेस लिव इन अ लिविंग कल्चर। सो वर्ड्स मीनिंग्स इवॉल्व विद टाइम एंड कल्चर एंड ट्रेडिशन एंड कॉन्टेक्स्ट। तो लुगत हर साल की अगर नहीं बनेगी तो आपको किस तरह पता चलेगा कि इस सदी में इसका ये मानी था, फिर अगली सदी में इसका ये मानी यहाँ से यहाँ पहुँच गया, इस लफ्ज़ का, फिर उस सदी के जुमले का आप आज की कंटेम्परेरी सोसाइटी के अंदर मानी को किस तरह इंटरप्रेट करेंगे। वो एक प्रोसेस है जो मुझे गांधी साहब का बड़ा पसंद है। और वो इंजीनियर साहब ने एक इस्तेदलाल पेश किया जो मैंने नहीं तस्लीम किया अभी तक। अब उम्मीद है उनके साथ एक और पॉडकास्ट होगी तो उनसे फिर से इस पे सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि कुछ सऊदी अरेबिया से भी लोगों ने इस चीज़ पे कमेंट किया था कि हम वहाँ पे ही रहते हैं और जो अरबी हम बोलते हैं वो कुरान में नहीं इस्तेमाल की गई। तो कैसे कैसे हो सकता है कि वही ज़ुबान अभी तक महफूज है जो आप कह रहे हैं, जबकि वो लिविंग ट्रेडिशन में उस तरह नहीं बोली जा रही। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन उसमें ये है कि क्योंकि ये कॉमन इंटरेस्ट की चीज़ें नहीं होती हैं, तो उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें पता नहीं चलती। अगर आप गांधी साहब की मीज़ान पढ़ें, तो उसके अंदर वो जो अपने जो डिफरेंट उन्होंने टॉपिक्स डिस्कस किए और उन्होंने लैंग्वेज के टॉपिक पे डिस्कस किया, क्योंकि कुरान से पहले उनके लिए लैंग्वेज डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो एक अरबी मोहल्ला का कॉन्सेप्ट जो है ना, उन्होंने उसके अंदर डिस्कस किया कि ये कौन सी अरबिक थी, जिसके अंदर जो है ना वो कुरान था। और वो मजाक में हम कहते हैं कि भाई एक होती है अरबी मोहल्ला और दूसरी होती है अरबी मोहल्ला। तो जो सऊदी अरब वाले आपके दोस्त बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जी हम जो अरबी मोहल्ला बोलते हैं, वो तो ऐसी नहीं है। और ये ऐसे ही होता है कि अगर आज आप गालिब की, जिसे कहते हैं ना, दीवान उठाएंगे, पढ़ने बैठेंगे, तो कराची में लोग इस तरह नहीं बात कर रहे। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि गालिब और इकबाल को अब आज पढ़ नहीं सकते या उनकी उर्दू जो है वो गुम हो गई है, क्योंकि दैट हैज ऑल्सो बीन प्रिजर्व्ड। और उसके लिए भी लोग जो है वो स्पेशलाइज कर रहे हैं और उसके अंदर अपना टाइम लगा के उसको प्रिजर्व कर रहे हैं। वो लैंग्वेज कुरान की आज भी प्रिजर्व्ड है, यानी वो इट हैज बीन नॉट लॉस्ट टू टाइम। ठीक है, वो ये कि जो कॉमन लोगों के अंदर जो अरबी बोली जा रही थी वो बदल जाती है, और जब वो कुरान पढ़ेंगे, अगर कोई चीज़ अनफेमिलियर है तो उनको वो सीखनी पड़ेगी, जस्ट लाइक एनी स्पेशलिस्ट नॉलेज। ठीक है ना? तो बिल्कुल ज़्यादातर यही मैं कुरान तो जवाब इतना, जी, चाह रहा था कि मुझे यही जवाब मिले। छोटा ज़्यादातर सा कुरान तो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि उसके अंदर किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। छोटा सा पॉइंट एक इस पे रेस कर सकता हूँ हाँ, गो अहेड। जी। इसी सवाल से रिलेटेड मूरू भाई, हमें अभी रिसेंटली साजिद हमीद साहब जो है वो एक कोर्स करवा रहे हैं जो कि अरबी शायरी के ऊपर है, जो अरबी शायरी जो कि एंशिएंट अरबिक पोइट्री है। तो बेसिकली उसका मकसद यही है कि हमें यही उस जमाने की जबान से आशना करना। तो यानी वो जिस तरह रजा भाई ने कहा कि वो जितनी भी लैंग्वेज है वो प्रिजर्व हुई हुई है, बस वी नीड टू लर्न इट। एंड अगर हमारा एक्सेस उस अरबिक पोइट्री तक हो जाएगा और हम उसको समझना शुरू हो जाएंगे, तो थिंग्स विल बी मच इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि अरब उस जमाने में किस तरीके से मुहावरा बोलते थे या किस तरीके से चीज़ों को लेके चलते थे। तो वो हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा और फिर उसके पर्सपेक्टिव से हम कुरान को भी इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो दिस इज प्रॉब्ली समथिंग दैट यू आर लुकिंग फॉर। वेरी इंटरेस्टिंग, यस एग्जैक्टली। जी, जबरदस्त। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब ये जो लेट्स से इन दोनों की आपने काफी जो है वो तारीफ की है, लेकिन इन दोनों के अप्रोच में, गांधी साहब के अप्रोच में, इंजीनियर साहब के अप्रोच में बहुत डिफरेंस है। तो मे बी यू हैव नॉट डेल्व्ड इनटू व्हाट देयर मेथोडोलॉजी और अप्रोचेस आर, मगर कभी ऐसा हुआ कि आपने दोनों की बात सुनी, बहुत डिफरेंट लगी, तो उनको आपने कैसे रिकंसाइल किया पर्सनल लेवल पे? अभी तक मैंने उनको साइड बाय साइड कंपैरेटिवली स्टडी नहीं किया। मुझे ये इतना महसूस हुआ है कि इंजीनियर साहब जो हैं वो गांधी साहब को कई दफ़ा प्रोटेक्ट भी करते हैं अपने लेक्चर्स में, और कई दफ़ा वो उनसे इख्तलाफ भी करते हैं।
और वो जिन चीज़ों पे इख्तिलाफ कर रहे होते हैं उन चीज़ों के बारे में मुझे नॉलेज ही नहीं होती। बस मैं यही कह सकता हूँ कि अच्छा ये इस चीज़ पे इख्तिलाफ है, हर चीज़ में कबूलियत नहीं है, 2 मकतबा फ़िक्र अलहदा भी हो रहे हैं एक तरह से। और आई थिंक एक इंसान को सारे इंसान एक चीज़ पे मुत्तफ़िक तो हो नहीं सकते। तो एक अच्छा लिविंग कल्चर है जिसके अंदर बातचीत चल रही है। मैंने टू आंसर योर क्वेश्चन वेरी ब्रीफली, आई हैव नॉट डन अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ बोथ स्कूल्स ऑफ थॉट। ठीक है, ठीक है। नहीं, वही इंजीनियर साहब की अच्छी बात ये है कि वो भी एक जैसे कहते हैं कि ओपन माइंडेड फेयर आदमी है। मतलब वो किसी के साथ भी जिसे कहते हैं ना कि कोई ब्लाइंड वो करने की कोशिश नहीं कर रहे, रिजेक्शन करने की कोशिश नहीं कर रहे। अगर खान साहब कोई बात ठीक कह रहे हैं, तो ही एप्रिशिएट्स इट, ही सेज कि भाई उनको गलत कहने की इसमें ज़रूरत नहीं है। जहाँ वो डिसएग्री करते हैं, वो डिसएग्री करते हैं। दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। हाँ, बिल्कुल इल्मी ठीक है, रात करते हैं वो। बिल्कुल। और उनके पास कंप्लीट इस बात का राइट है और मेरे ख्याल में ये तरीका जो है वो बहुत अच्छा है। इससे मतलब इट गिव्स एवरीबॉडी स्पेस। अच्छा ये थोड़ा-सा इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यानी कि इसका ताल्लुक यानी आपसे आपसे भी कुछ लोगों ने ये सवाल किया है कि जी आप फ्यूचर जनरेशन को क्या मैसेज देंगे? तो ये गांधी साहब और इंजीनियर साहब जैसे जो लोग हैं, इनकी पॉपुलैरिटी यंग जनरेशन में काफ़ी है। आपको क्या ख़्याल है, क्यों है इनकी ये पॉपुलैरिटी? कोई फैक्टर्स आपके ज़हन में आते हैं? आई थिंक करंट डे एंड एज के अंदर आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अब मैं भी जब बचपन में ही इंटरनेट हमारे पास जब आ गया था, तो मेरे पास रिचर्ड डॉकिंस की भी वीडियोज़ आती थीं, मेरे पास स्टीफ़न फ्राई की भी वीडियोज़ आती थीं, एक बहुत अच्छे स्टैंड-अप कॉमेडियन है जॉर्ज कार्लिन। ये मैं आपको इस वक़्त प्योरली एथियस्टिक लोगों की बात बता रहा हूँ। तो वो एथियस्टिक लोग जो हैं, जिनमें से कुछ साइंसदान भी हैं और उनकी रिचर्ड डॉकिंस की तो बहुत कंट्रीब्यूशन भी है साइंस के अंदर। द सेल्फिश जीन उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसके अंदर मिमेटिक जीन का कॉन्सेप्ट उन्होंने बयान किया था, जो कि अब मोस्टली कबूल किया जाता है साइंटिफिक कम्युनिटीज़ के अंदर। तो अब अगर इस तरह के कंट्रीब्यूटिंग साइंस की कम्युनिटी के मेंबर्स जो हैं, वो अगर एथियस्टिक ओपिनियन रखते हैं और आपको मिल रहा है वो ओपिनियन, तो उसका दूसरी तरफ अगर जवाब आपको पूरा नहीं मिलेगा, तो आपकी इन्फॉर्मेशन चैलेंज होना शुरू हो जाएगी। और आई थिंक मेरे जैसे जो ओपन माइंडेड लोग होते हैं, वो सब कुछ कंसिडर करने वाले भी जो होते हैं, तो वो जब सुनते हैं तो उनको फिर एक अपने दीन के नज़रिए से एक और रिस्पॉन्स भी मिलनी होती है। तो द यंग जनरेशन इज़ अट्रैक्टेड टू इंजीनियर साहब एंड गांधी साहब बिकॉज़ वो एंगेज करते हैं इस डिस्कोर्स के अंदर, और वो वही जिस तरह आपने कहा था इस्तिदलाल की बुनियाद पे दलील पेश करते हुए बात को रद्द करते हैं। तो गांधी साहब का तो मुझे ये भी बड़ा एक जुमला बड़ा पसंद है कि वो कहते हैं कि वो जिस तरह आप हिस्ट्री को मानते हैं ना कि हिटलर एक आदमी था, एग्जिस्ट करता था, आप मानते हैं क्योंकि आपके पास एविडेंस है, इस तरह वो इस्लामी तारीख को भी ए से लेके जी तक आपको हिस्टोरिकल तरीके से कि एक चीज़ हुई थी, वो आपको जोड़ के और उलमा की इजमा के ज़रिए, तवातुर के ज़रिए, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन है हमारे इस्लाम का, उसके ज़रिए जस्टिफाई करते हैं। तो वो जस्टिफिकेशन का प्रोसेस आई थिंक हमें मिल रहा होता है गांधी साहब से भी, इंजीनियर साहब से भी, एंड दैट्स वेरी अट्रैक्टिव। क्योंकि क्वेश्चनिंग माइंड जो होता है, अनलेस उसको एट अर्ली एज चाइल्डिश क्यूरियोसिटी को बिल्कुल ही बंद कर दिया जाए, तो वो क्यूरियस माइंड जो है वो सवाल पूछेगा, उसको जवाब नहीं मिलेगा, तो जिधर से उसको ज़्यादा बेहतर ओपिनियन मिल रहा है वो उसको तस्लीम करके इख्तियार कर लेगा। तो गांधी साहब और इंजीनियर साहब की ये बड़ी अच्छी बात है कि वो जस्टिफाई करते हैं। ठीक है। शॉन, आप अपना कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे? Yeah, I think I have a follow-up question related to this topic. So, I mean, as someone who does a lot of work with Muslim youth in Al Morid chapter in Canada, I'm actually quite interested in the role that people like yourself can play as a social influencer to help the next generation address the issues that they might be struggling with to understand as young Muslims. And I'm actually interested in, what can be done to develop a culture to facilitate this. So I'm just curious where you see yourself with respect to such work, and what role do you think social influencers in places like Pakistan can do to help develop a culture of dialogue and tolerance? I don't know. I have a bit of a swinging pendulum when it comes to wanting to do something and not wanting to do something and contributing to this, because I'm primarily a storyteller and a musician and an artist. अब उसके अंदर ज़्यादातर जो सोच होती है वो कैरेक्टर आर्क्स और स्टोरी टेलिंग और उस तरह की मैसेजिंग की होती है जो ह्यूमैनिटी को प्रमोट करती है, टॉलरेंस को प्रमोट करती है, और उसमें प्रीची होने का मुझे
ज़्यादा शौक नहीं है, पॉसिबली जस्ट प्रेजेंटिंग क्वेश्चंस सो दैट आपकी प्लमिंग काम करना शुरू कर दे सवालात की। तो एक सवाल अच्छा अगर आपने पेश कर दिया किसी वीडियो की वजह से, जिसकी वजह से एक सोच शुरू हो गई है, तो वही आई थिंक आपका जवाब है। क्योंकि अगर आप क्यूरियस हो जाएंगे तो फिर आप रिसर्च शुरू करेंगे, अगर आप मुताला करेंगे तो आपको अपने दिमाग बनाने की आदत हो जाएगी। तो आई काइंड ऑफ स्विंग बिटवीन वांटिंग टू टेल पीपल व्हाट आई बिलीव एंड देन नॉट वांटिंग टू टेल देम व्हाट आई बिलीव एंड लेटिंग देम figure out what they believe, you know, because that's really how I learned anything. So I don't know, I think what I'm doing is the solution as well, because I'm taking action towards, you know, creating that discourse by putting these videos on my channel, but every time I do it, it's so exhausting because मैं academic नहीं हूँ कि मेरी बाकी सारी चीज़ें रुक जाती हैं और मैं एक कमरे में बंद हो जाता हूँ, एक बत्ती चल रही होती है, किताबें पढ़ना और सारी रात दिमाग खुरच रहा है, मुझे पसीने आ रहे हैं, it's not easy for me. The other stuff that I do, it's very easy, like humor, joke मारना 2 सेकंड में आ जाता है, गाना बनाना, yeah, it's coming out, it's easy. But this is painstaking work. So with the painstaking part of it, there's a slight discouragement as well, because my mind says, यार भाई थका दिया तूने last video में मुझे, अब तो जरा थोड़ी relaxing चीजें कर. So वही, the pendulum keeps swinging, and I think the solution is really to, you know, keep having discourse and keep putting your voice out there. So that is, I think, a solution, and hopefully that helps the youth. I don't know if it does. I hope so. Yeah, thanks for that answer. All right, Omar, you had something to say. Ji, I think this is the last official question of the session. Again, you've mentioned this idea of reconstruction of religious thought. काफी दफा. This is particularly interesting for me because जब ये सवाल उसी तरह का है जो ऑलमोस्ट हर कम्युनिटी के अंदर आपको मिल जाएगा कि जी रिकंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, लेकिन इसका मीनिंग जो होता है वो काफी फर्क होता है. कुछ लोग आपको कहेंगे कि जी हमने रिकंस्ट्रक्शन कर ली है, 200 साल पहले कर ली थी, अब वही चलेगी. कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी एक एपिस्टेमोलॉजी जो है मॉडर्निस्ट किस्म की डेवलप कर लिया और उसको भी वो यही क्लेम करेंगे कि रिकंस्ट्रक्शन हो चुकी है. इसी तरह का एक आइडिया आपको मिलता है पाकिस्तान के स्टूडेंट कम्युनिटी के अंदर. जब मैं स्कूल में होता था, जब लोग कहते थे कि ये मौलवियों को साइड पे करो, अब हम जो है ना इंटेलेक्चुअल किस्म के लोगों से रिकंस्ट्रक्शन करवाएंगे. और फिर बीच के रास्ते में कुछ ऐसे लोग हैं जैसे गांधी साहब हैं या इंजीनियर साहब हैं जिन्होंने एक मेथोडोलॉजी डेवलप करने की कोशिश की है कि हम इस आइडिया को है रिकंस्ट्रक्ट करेंगे. इसी तरह फिर आपको सब कॉन्टिनेंट के हिस्ट्री में भी लोग मिल जाएंगे, जैसे मौलाना शिबली थे, उन्होंने पूरा इस्लाम का जो है इल्मुल कलाम उसको एक नई जो है साइंटिफिक किस्म की शक्ल देने की कोशिश की. तो ये pretty broad किस्म की टर्म है जो इस टाइम at least in the Muslim world almost हर geographical और intellectual community के अंदर है. Even जो traditionalist किस्म के लोग हैं वो भी इस आइडिया को तस्लीम करते हैं. तो I was wondering कि आप पर्सनली इस तरह के आइडिया को किस एंगल से देखते हैं कि ये रिकंस्ट्रक्शन अगर होनी है तो किस चीज में होनी है और किस तरह के इन्फ्लुएंसेस से होनी है. आई थिंक रिकंस्ट्रक्शन वर्ड के अंदर ही एक चीज है जिसका मतलब है री करना, साइकिल है, एक कांस्टेंट चीज होनी चाहिए वो. तो अगर आप रिकंस्ट्रक्ट भी कर रहे हैं, अगर आप पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे ओपिनियन, तो वो कंस्ट्रक्ट होने के बाद उसको एकेडमिक भी डिसिप्लिन्स के अंदर आप देखते हैं एक चीज कहलाती है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, एकेडमिक क्रिटिसिज्म, कि आप कम्युनिज्म का आइडिया फिर से उठा सकते हैं और उसको क्वेश्चन किया जा सकता है और आप अपने दलील पेश कर सकते हैं और उससे उसको रिफॉर्म भी कर सकते हैं कि नियो कम्युनिज्म पैदा हो जाए, कि सोशलिज्म, नियो सोशलिज्म आ जाए वजूद में. तो रिकंस्ट्रक्शन तो नेवर एंडिंग प्रोसेस होना चाहिए. और आई थिंक हर दौर की रिक्वायरमेंट होगी कि आप देखें, तारीख को स्टडी करें, क्या चीज़ किस कॉन्टेक्स्ट में आई थी और अब क्या कॉन्टेक्स्ट एग्जिस्ट करता है. द वर्ल्ड इज अ चेंजिंग प्लेस, सो इफ द वर्ल्ड वाज अ स्टैटिक प्लेस और सब कुछ एक ही तरह का होता तो देन यू वुडंट नीड टू डू इट. मगर द वर्ल्ड इज चेंजिंग एंड you know, like the structures of society, civilization are constantly in a state of flux. So if that is constantly changing, then you must reconstruct every other thing as well that goes along with it. So I think it's a constant process. I don't see it as कि अब ये हो चुकी हुई है, या अगर हो चुकी है तो फिर वो reconstruction of religious thought हो ही नहीं रही ना, फिर तो वो हो चुकी है, तो construction हो गई. तो reconstruction का मतलब है ही कि वही करते रहना है और फिर उसको justify करते रहना है. तो it's almost like putting a full stop to a question mark.
एक क्वेश्चन मार्क है, आप कह रहे हो नहीं जी फुल स्टॉप है, क्या मतलब रिकंस्ट्रक्शन है तो करनी होगी, तो फिर लेट्स टॉक अबाउट इट अगेन, इसमें क्या गलती है? तो आई थिंक इट्स अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस। अच्छा, इसी सवाल के कॉरोलरी के अंदर ये अप्रोच जो है आपको फिर गांधी साहब का जो काम है, दिस इज लाइक अ 3 जनरेशन प्रोसेस जो उनके उस्ताद के जमाने से शुरू हुआ था, जिसके अंदर वही बात आ जाती है कि उन्होंने लिंग्विस्टिक्स को जो है अपना बेसिस बना के और फिर रिजल्ट को छोड़ दिया कि इसका जो भी रिजल्ट बनेगा उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। ये टाइप की अप्रोच आपको लगती है इस तरह की रिसाइक्लेबल है? ये एक दफ़ा मैंने उनको लेक्चर में भी कहते सुना था कि उनकी मीज़ान की जो तीसरी चौथी दफ़ा छपी थी तो उसमें कुछ चीज़ें भी चेंज कर दी थी उन्होंने, तो वो अपने ओपिनियन को और मुझे ये भी बात एक्चुअली उनके बेटे से पता चली थी, जवाद गांधी साहब से, कि वो बहुत क्रिटिकल हैं अपने ओपिनियन के बारे में, और वो अपने ओपिनियन जो अगर उन्होंने कह दिया कि ज़कात होनी चाहिए, तो वो ये नहीं कहेंगे कि ज़कात होनी चाहिए, वो कहेंगे ज़कात नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? तो अब वो अपनी आर्गुमेंट पे they'll poke holes at their argument over and over again till they arrive कि नहीं जी ज़कात होनी चाहिए। तो that I think is an academic process which an इल्मी रवैया है। knowledge cannot exist, epistemology आपने word use किया था, तो the validity of truth or knowledge is something that is in a constant state of, and if it's an epistemic faith that you have in religion, then it is a constant questioning of that faith, because epistemology is that. So I think गांधी साहब के प्रोसेस में इंक्लूडेड है ये चीज। परफेक्ट, ठीक है जबरदस्त। वैसे ये मतलब थोड़ा सा यानी कि ये जो पॉइंट है ना, ये हमें मौका भी दे रहा है कि इसके अंदर हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लें। कुछ चीज़ें जो है ना वो मेरे ध्यान में थी कि आपसे बात करने का मौका मिलेगा तो कुछ चीज़ें क्लैरिफाई भी करेंगे। आपका एक वीडियो क्लिप मैंने निकाला है, मैं पहले वो प्ले करता हूँ और लोग उसके अंदर आपका वो पॉइंट ऑफ व्यू भी देखें जो आपने इससे रिलेटेड बयान किया। ऑफ रिलीजियस थॉट में जदीद ज़माने के एहसासात का जब कदीम ज़माने के इल्म से तजाद हो तो फिर बस सॉफ्टवेयर अपडेट करने की ज़रूरत होती है, यानी कि नए दौर के सच के साथ अपनी स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस को अलाइन करना। इस पे जावेद अहमद गांधी साहब बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और ये मजहबी फ़िक्र को मजबूत करने का तरीका है। टू बी इन्फॉर्म्ड, टू रिकंस्ट्रक्ट योर रिलीजियस थॉट। जी, तो अब मैं आई जस्ट वांट टू प्ले दैट क्लिप कि वहाँ जो आपने कुछ बातें बयान की है ना, तो जैसे आपने कहा कि एवोल्यूशन की जो आपने वीडियो बनाई उसमें जो बात आप कहना चाह रहे हैं नेसेसरली ज़रूरी नहीं कि सामने वाले को जो है समझे। इसमें भी ये है कि यहाँ जो आपने इसमें बात की है इससे कुछ लोग जो है इसको मिसरीड कर सकते हैं और मैं उसमें कुछ चाहता हूँ कुछ क्लैरिफिकेशंस भी हो जाएं। तो अगर आप गांधी साहब से यानी इसमें थोड़े से यानी बहुत सारे स्ट्रीम्स मिक्स हो रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल भी इसके अंदर इश्यूज हैं। जैसे अगर आपने अयान हिरसी अली को सुना हो, अब वो शी इज अ वेल नोन एथियस्ट और वो इस्लाम के ऊपर बहुत बात करती हैं फ्रॉम कॉन्ट्ररी पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो एक लफ्ज यूज करती रहती हैं कि जी इस्लाम को रिफॉर्म करने की जरूरत है क्योंकि रेफॉर्मेशन जो है वो क्रिश्चियनिटी में हुई थी। लेकिन ये है कि इस्लाम को रिफॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट अगर आप गांधी साहब से पूछेंगे तो वो ये नहीं कहेंगे कि इस्लाम को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। वो समझते हैं कि इस्लाम जो है जैसा है वो ठीक है। वो जब वो बात करते हैं और वो ये अल्लामा इकबाल की जो किताब है उसका टाइटल यूज़ करते हैं, यानी कि अल्लामा इकबाल ने जो एक किताब लिखी है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट, उसके अंदर एक चैप्टर है, मेरे ख्याल में सेकंड लास्ट चैप्टर है, मेरे जहन में भी उसका नाम जो है वो मुकम्मल नहीं आ रहा। वो कुछ इस तरह उसका नाम है द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ इस्लाम। आई होप कि मैंने ये नाम सही लिया। आप इस चैप्टर को पढ़ के देख लें, आप ऑनलाइन सर्च करें इस किताब के लिए, allamaikbal.com के ऊपर ये बुक अवेलेबल है। इस चैप्टर को आप पढ़ के देखें। उन्होंने अंदर इस चैप्टर में इज्तिहाद की इम्पोर्टेंस, किस तरह ट्रेडिशनल जो हमारी सोच है वो स्टैटिक हो गई है, उसको जैसे कहते हैं ना कि डायनामिक बनाने की ज़रूरत है, एडेप्टेबल बनाने की ज़रूरत है, मॉडर्न चैलेंजेस को वो फेस कर सके। यानी जो आप कुछ एक डायग्राम आपने बनाई थी और आप जो उसमें एक पॉइंट कर रहे थे, इट समवॉट रेजोनेट्स विद दैट। अगर आप गांधी साहब से पूछेंगे ना तो गांधी साहब ने इस किताब का टाइटल यूज किया है अपने फिक्र के लिए, अपनी सोच के लिए कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट करनी। हमने रिलीजन को रिकंस्ट्रक्ट नहीं करना। रिलीजन अल्लाह की तरफ से आया है, रिलीजन जो है ना वो एक परमानेंट मैसेज है।
हमने रिलीजियस थॉट को, यानी जो फिक्र है लोगों की, या किसी भी ग्रोह ने जो कोई फिक्र बना ली है या प्रेवलेंट फिक्र है, हमने उस फिक्र को रिवाइज करना है, रिकंस्ट्रक्ट करना है। और जब आप उसको रिकंस्ट्रक्ट करने जाएंगे तो आपको उसको उसके फंडामेंटल से अप्रोच करना होगा, यानी जो आपने अभी बात की एपिस्टेमोलॉजी की। तो गांधी साहब का जब आप काम देखेंगे ना, इट इज़ अ वेरी एपिस्टेमोलॉजिकल काइंड ऑफ वर्क। तो उन्होंने जो है उसको उसकी फाउंडेशन से अप्रोच किया। ये जो हम ऑफन ये टर्म यूज करते हैं तवातुर, ये तवातुर जो है वो बाकी लोग भी यूज करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन व्हाट डज ही मीन बाय दैट, यहाँ पर वो एक बहुत, जिसे कहते हैं इंपॉर्टेंट डिबेट्स या डिस्कशन हुई है कि तवातुर का मतलब क्या है, इजमा का मतलब क्या है, किस चीज़ को हम दीन के अंदर जो है वो एक फिक्स चीज़ समझें या उसको जो है ना उसका कांस्टेंट पिलर समझें, कौन सी चीज़ें जो है ना वो आपने बहुत सारे लोग गम साहब से क्वेश्चन पूछते हैं कि जी इसके बारे में आपका, या दीन इसके बारे में क्या कहता है। गम साहब कहते हैं दीन का क्वेश्चन ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने जो है जिन प्रिंसिपल से स्टार्ट किया है वहां से उन्होंने एक सर्कल ड्रॉ किया है कि दीन के जो है वो क्वेश्चंस क्या हैं और दीन के जो है उसमें ओपिनियंस क्या हैं। बाकी चीज़ें जो उससे बाहर हैं उसमें जो है वो अननेसेसरीली दीन को लाने की जरूरत ही नहीं है। वो तो आपकी दुनिया के मामला हैं, आप सारी चीज़ें हैंडल कर सकते हैं। आपको दीन ने एक जनरल एथिकल मॉरल गाइडेंस दी हुई है, आपके अंदर भी मौजूद है, कुरान के अंदर भी मौजूद है। आप उसको अप्लाई करें, बाकी दुनिया के सारे काम सॉल्व करते रहें। जब हम एक ये पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं ना कि दीन एक ऑल एनकम्पासिंग चीज़ है और नथिंग इज आउटसाइड इट, वहाँ पर फिर क्या होता है कि बहुत सारे क्लैशेस शुरू हो जाते हैं। तो उन्होंने जैसे कहते हैं कि ये एपिस्टेमोलॉजिकल एक तरह से काम किया जिसके अंदर उन्होंने वो जैसे कहते हैं ना कि ट्रू दीन क्या है, यानी क्या उसका जो है ना एम्बिट है, उसका जो उसका जिस कहते हैं किस एरिया को वो कवर करे, वो उन्होंने जो है वो आइडेंटिफाई किया। और बाकी जो नॉन रिलीजियस क्वेश्चन हैं वो जैसे कहते हैं वो जनरल प्रिंसिपल्स पे हैंडल होंगे, एथिक्स और मोरालिटी पे हैंडल होंगे। वो कॉमन इनहेरिटेंस है ह्यूमैनिटी की, कि सारी ह्यूमैनिटी को पता है कि भाई सर्टन चीज़ों से कैसे डील करना है, और आप उनके साथ कम्प्लीटली उस चीज़ को शेयर करते हैं। कुछ चीज़ें जो स्पेसिफिकली दीन जो है वो टारगेट कर रहा है, फॉर एग्जांपल दीन जो है वो तौहीद को टारगेट कर रहा है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हो सकता है कि बाकी सारी ह्यूमैनिटी के साथ अब वो ये टॉपिक शेयर ना कर सके। ये दीन कह रहा है आपको कि जी आपने लेट से उन तक पहुंचाना है, लेकिन ये है कि बाकी लोग हो सकता है तौहीद में नहीं बिलीव करते हो, मगर बाकी चीज़ें उससे जो बाहर हैं वो तो उनके साथ शेयर्ड है। इसी तरह आफ्टर लाइफ एक चीज़ है जो कुरान जो है वो बहुत ज़्यादा उसके बारे में बात करता है, फॉर एग्जांपल, राइट। मगर आप बहुत सारे सेक्युलर लोगों से, ह्यूमनिस्ट से बात करेंगे, वो कहेंगे कि भाई हम आफ्टर लाइफ बिलीव नहीं करते, देयर इज नो एविडेंस फॉर इट, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उनके साथ आप वो चीज़ें शेयर नहीं करते, मगर उनसे और बहुत कुछ शेयर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल। इसी तरह जज़ा और सज़ा का कॉन्सेप्ट है कि दुनिया में आपको फ्री विल दिया, आप एक्शंस अपने करते हैं, चूज़ करते हैं। एक दिन इसकी जो है वो जवाबदेही है, इसकी जजमेंट है, आपने अपने एक्शंस के लिए जवाब देना होगा। बहुत से लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते, वो कहते हैं डजंट मेक सेंस, भाई छोटी सी लाइफ टाइम है, इसके अंदर मुझे इतनी कंस्ट्रेंट्स में पैदा किया, मैं क्यों जवाब दूं इन बातों का, ठीक है। लेकिन ये दीन के टॉपिक्स हैं, ठीक है। और उसमें भी जैसे कहते हैं ना कि जो एपिस्टेमोलॉजिकल फाउंडेशन हैं कि कैसे एस्टेब्लिश करें कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो ट्रूली जो है वो दीन का पार्ट है और कौन सी नहीं है। और इसके अंदर जो है ना फिर बहुत सारी डिबेट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल लोग जो है गामती साहब को ही कहते हैं कि भाई देखो ये तो दाढ़ी जो है वो सुन्नत है, वो उसको नहीं मानते, हालांकि वो ये नहीं कह रहे। उनसे आपको ये समझना पड़ेगा कि वो सुन्नत को डिफाइन कैसे कर रहे हैं, क्योंकि ये एपिस्टेमोलॉजिकल क्वेश्चन है, सुन्नत को आप डिफाइन कैसे कर रहे हैं। जैसे ही आपने उनकी डेफिनेशन को समझा और आपने देखा कि कितना सिंसियरली और कितना जैसे कहते हैं मेटिकुलसली उन्होंने उस चीज़ को अप्लाई किया, तो आपको समझ आ जाएगी कि वो ये क्यों कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। इसका मतलब वो कतई तौर पे नहीं है कि उनको जो है वो लिबरल्स को प्लीज करना है, या आई डोंट नो, उन्होंने जैसे कहते हैं कि आज के दौर में जो है वो ये चीज़ वो कॉमन नहीं रही। वो तो कहते हैं कि भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज के दौर में क्या कॉमन है क्या कॉमन नहीं है। ही हैज टू रिमेन फेथफुल टू द वर्ड ऑफ गॉड और द रिलीजन ऑफ गॉड। तो वो उसके अंदर जो है वो अपने आप को वहां प्लेस करने की कोशिश करें कि जिसके अंदर वो सबसे ज्यादा सर्टेनिटी के साथ कोई बात कर सके। अगर वो नहीं कर सकते तो वो उसको जो है वो उसके अंदर इंक्लूड नहीं करते। और यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है वो आप समझें कि उस सर्कल से बाहर आ जाती हैं जो दूसरे जो लोग बिलीव करते होंगे और वो उससे इस बात पे एग्री नहीं कर पा रहे। तो ये जो रिकंस्ट्रक्शन का जो उनका आइडिया है, अगेन दिस इज अबाउट रिलीजियस थॉट, यानी कि लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है और लोगों की जो जैसे कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन है कि रिलीजन क्या चीज़ है या इस्लाम क्या चीज़ है, यहाँ पर जो है एक तरह का रिविजन आया है। वरना अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग जो है ना हम साहब के बारे में इस तरह की बातें करते हैं कि भाई ये तो लिबरल्स इनको पसंद करते हैं, ठीक है ना, ये तो जी कोई मॉडर्निस्ट है, ये तो जी रैशनल है।
अब क्योंकि गांधी साहब जो है फिलोसफी के पर्सपेक्टिव से आ रहे हैं तो उनको पता है कि रैशनल लफ्ज का मतलब क्या है। गांधी साहब से पूछे, वो मना कर देंगे, मैं रैशनल नहीं हूँ। लोग समझेंगे वही रैशनल, तो ये कॉमन यूजेज के अंदर रैशनल का मतलब होता है कोई रीजनेबल आदमी और जो रीजन यूज करता है। गांधी साहब बिल्कुल रीजन यूज करते हैं, वो खुद लिखते हैं ये बात कि जी दीन रीजन पे बेस्ड है। उसकी वजह है कि अल्लाह ताला ने आपको रीजन दिया है, आपको एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड दी है, और आपको दीन कॉम्प्रिहेंसिबल बना के दिया है ताकि आपकी उससे मैच करे, ठीक है ना, आपकी फितरत से, आपकी अकल से मैच करे। आपको यूनिवर्स कॉम्प्रिहेंसिबल बना के दिया ताकि आपकी अकल से वो मैच करे, आप साइंस क्रिएट कर सके। तो कहने का मकसद है कि वो रैशनल जो है वो इस सेंस में है, लेकिन जो फिलोसॉफिकल सेंस है रैशनलिज्म का, उसमें वो रैशनल नहीं, ही कंप्लीटली रिजेक्ट्स दैट। इसी तरह लोग उनको कहते हैं भाई ये तो मॉडर्निस्ट है, तो वो कंप्लीटली रिजेक्ट्स, बिकॉज फिलोसॉफिकल सेंस में और हिस्टोरिकल सेंस में मॉडर्निटी का कुछ मतलब है, और वो उसको ओन नहीं करते, वो अपने आप को मॉडर्निस्ट नहीं करते। अगर मैं तो उनको अपने पर्सनल असेसमेंट दूं तो गांधी साहब जो है ना वो ट्रेडिशनल स्कॉलर में भी ज्यादा ट्रेडिशनल, और जैसे कहते हैं ना कि कंजर्वेटिव स्कॉलर्स में भी सबसे ज्यादा कंजर्वेटिव स्कॉलर है। जब आप उनकी मेथोडोलॉजी समझ जाएंगे कि वो कितना बारीकी से इस चीज को देख रहे हैं, ये जस्ट बिकॉज के असल में हमने बहुत सारे जो इश्यूज थे जो कि उतना सर्टेनिटी के साथ दीन का मसला नहीं थे, जब हमने उनको बना दिया तो बहुत सारे इस तरह के डिसएग्रीमेंट्स पैदा हो गए, बहुत सारे इस तरह के क्लैश पैदा हो गए। उस पर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर गांधी साहब को डिनाई करने का इल्ज़ाम दिया था, हालांकि इन हिज ओन कैपेसिटी ही इज नॉट ट्राइंग टू डू एनी ऑफ दैट। और कहीं उन्होंने इस तरह की बात की कि मुझे इसको डिनाई करना है, मेरे ख्याल में ये चीज़ जो है गलत है। तो आई जस्ट वांटेड टू पुट इट आउट देयर कि ये मतलब मैं आपके उसमें मेरे क्या आया था कि जो रिकंस्ट्रक्शन यहाँ पर है ये एक बहुत स्पेसिफिक अंदाज के अंदर गांधी साहब जो है बात कर रहे हैं। यानी इकबाल से खुद, यानी इकबाल ने जो किताब लिखी है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट, इससे गांधी साहब खुद डिसएग्री करते हैं। और इकबाल ने जिस टाइम पे लिखी उस टाइम पे भी लोग डिसएग्री करते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा पॉइंट इन टाइम आइडिया था कि उस वक्त जो है जो हमें चैलेंजेस फेस कर रहे थे हम आज से 100 साल पहले या 150 साल पहले, और अंग्रेजों के आने की वजह से और मॉडर्निटी के ऑलमोस्ट असॉल्ट की वजह से जो हम चैलेंजेस फेस कर रहे थे, तो उसकी रिएक्शन में जो बहुत कुछ हुआ, तो उसमें बहुत सारी बातें की गई। तो गांधी साहब उन सब चीज़ों को ओन नहीं करते। तो गांधी साहब जो है वो इकबाल की जो इसके अंदर फिक्र है या आइडियाज है उनसे डिसएग्री भी करते हैं, मगर एट द सेम टाइम ही बिलीव्स दैट इकबाल hit the nail on the head with the thesis or the topic कि हमें इसकी ज़रूरत है, reconstruction of religious thought। और वो समझते हैं कि उन्होंने जो है उस तक एरियाज भी सही आइडेंटिफाई किया। तो थोड़ा सा सरमन हो गया, लेकिन आई जस्ट वांटेड टू पुट इट आउट देयर कि ये इसके अंदर जो है ना वो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, और यानी कि एक एक वर्ड को थोड़ा सा अनपैक करने की जरूरत है। हाँ, और बहुत मतलब कि एक तरह से डब्बे के अंदर डब्बा भी है, क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट के पर्चे को भी रिकंस्ट्रक्ट किया उन्होंने। तो वो एक इज अ कांस्टेंट, एक चीज में घुसे तो उसके अंदर और जाना पड़ता है, उसके अंदर और जाना पड़ता है। तो क्वांटम सोच है उनकी, आई थिंक बड़ी अच्छी बात है। सही है। और गांधी साहब के आपने सुना होगा कि उनके जो आपने एग्जांपल मेंशन की कि एक डायनामिज्म है। उन्होंने कहा कि अभी तक जो मैंने समझा है उसके मुताबिक मेरा ये ओपिनियन है, कल अगर मैं जो है इसके अंदर किसी भी चीज़ में इफ आई एम प्रूवन रॉन्ग आई विल चेंज माय ओपिनियन। यानी उसके अंदर वो ह्यूमन डायनामिज्म उन्होंने जो है वो रखी हुई है। ये उन्होंने ये अस्यूम नहीं कर लिया कि अब मेरे पास डिवाइन लेवल ऑफ सर्टेनिटी इसमें आ गई है और अब जो है वो मैं कुछ चेंज नहीं हो सकता। तो वो एलिमेंट भी इसके अंदर मौजूद है। बिल्कुल तालिब इल्माना रवैया, बिल्कुल जबरदस्त। तो अब हमारे पास सारे क्वेश्चन जो हैं वो खत्म हो गया। लास्ट फ्यू मिनट्स है, अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहिए, ओपन क्वेश्चन। मुझे बड़े सवालात हैं, लेकिन आई थिंक ये अगर हम करते रहेंगे तो मैं आपसे दीन के बारे में कुछ सीखता रहूंगा। हम भी कोई स्कॉलर नहीं, हम भी मेरे ऐसे राउंड ही किसे सेंटर हो, कहते हैं। प्लीज मैं चाहूंगा कि दीन के राउंड सेंटर हो, कभी हम जरा कोई और भी बात कर सके मेरे अलावा। नहीं, हम भी कोई स्कॉलर्स नहीं, लेकिन ये कि हम भी स्टूडेंट्स हैं, हम भी सीखने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें। आखिर हमारा रिलीजन है, हमें तो कुछ तो जिसे कहते हैं उसकी समझ होनी चाहिए। बिल्कुल। मुरू साहब के लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए, जो रजा साहब जिस चैप्टर का जिक्र कर रहे थे उसका टाइटल है द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ इस्लाम, कोई देखना चाहते हैं। आई वुड लाइक टू थैंक मुरू भाई कि आप आए और आपने जो है हमसे इस चीज़ पे बात की, एंड आई होप कि इन फ्यूचर भी हम आपके साथ इन कांटेक्ट रहेंगे और इस तरह की चीज़ें एक दूसरे से सीखते रहेंगे।
और ये क्वेश्चन करना ही आई थिंक लाइक इज वन वे टू लर्न. सो कुछ सवालात आप उठाएंगे, कुछ सवालात हम उठाएंगे, कुछ के जवाबात आप देंगे, कुछ के जवाबात हम लोग मिलके ढूंढेंगे. तो आई थिंक इसी तरीके से हम लोग सीखेंगे और आई होप कि हम अच्छे से आगे चल सकेंगे. बिल्कुल उमर भाई, आपसे और उमर भाई से और शौन भाई से और रजा भाई आपसे मिलके तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि अमूमन इस मौजू के ऊपर लोगों से बात करते हुए थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन आज हमने हमें भी लगता है बात किया तो मजा है. बाकी आप नॉर्वे के करीब डेनमार्क आए थे, मेरा ख्याल से आपने जो व्लॉग बनाया था, आप नॉर्वे नहीं आए थे, कभी नॉर्वे आए तो उमर भाई मैं आपको जरूर तंग करूंगा, स्कैंडिनेविया का आने का प्लान तो है जरूर, तो इंशाल्लाह इसी साल के अंदर आपसे मुलाकात हो जाएगी. ग्रेट, इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा हो जाएगा. क्या बात है, फ्यूचर प्लान भी सेट हो गए. चलें फिर मैं यहाँ रिकॉर्डिंग जो है वो स्टॉप करता हूँ. और थैंक यू वेरी मच मुरू भाई, आपके पैशन से जो है वो हम इंस्पायर हुए और हमने आपको रीच आउट किया. और इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन विद यू. आपके ख्यालात भी सुनने का मौका मिला और आई होप कि हमने भी जैसे कहते हैं कि कुछ यूजफुल आइडियाज आपके साथ शेयर किए होंगे. थैंक यू सो मच, प्लेजर वाज ऑल माइन. थैंक यू वेरी मच.